Now let us start a new topic. Steady state error analysis. So my friend, if you are joining us for the first time in this lecture, make sure that you have subscribed to this channel and make sure that you watch the earlier covered lectures, because that is where we have covered transfer function, signal flow graph, transient analysis, and now we are starting a new thing, that is the steady state error analysis. Okay, steady state error analysis. Okay, is that clear? Okay, now let us first understand, guys, what is the practical significance of this topic. What is the practical significance? See, steady state means when the output settles down to a final value, right? That is what the steady state means. When we started time response, I clearly explained to you the physical significance of transient and the steady state. So steady state is when the output settles down to a final value. Now if that final value is the desired value, then very good. But if it is little bit different from the desired value, then that deviation, that difference is called as the steady state error. Like, let me take a real life example. Okay, let me take a real life example. Right now I am sitting in my studio. I am taking your class. My AC, I have set it at 22 degrees centigrade. But literally, let me tell you, I am feeling very hot. Okay, the heat is basically the heat is high in this room, and that is why the temperature is high. And I am not feeling very comfortable in this temperature. So that means if the AC does not cool the room anymore, then the temperature at which this room is settled is different from my desired temperature. अगर मैं टेम्परेचर 22 लाना चाहता था और AC ने 24 लाके छोड़ दिया, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का डेविएशन है, और ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है मेरे दोस्त? That is called as your steady state error. That is called as your steady state error. Okay, similarly, suppose I take part in archery or I take part in shooting. Then I'll have a target where I have to focus and where I have to shoot. Now if my dart directly strikes at that point, then it is good. But if it does not strike that point, that means there is an error between the value that I was targeting and the value that I obtained. Okay, are you able to understand what is the steady state error? Steady state error is the deviation of the final value of output from the desired value. And you will see this steady state error in all aspects of your life. Suppose someone, let us say someone wanted to get a rank, let us say 10 rank, and he is able to get the rank 12. Then there is a 2 AIR difference, that is the steady state error. Okay, so let me tell you. Suppose let me take an example from a student attending this batch. Let us say Shivam is there. Okay, Shivam is there. Let me say his desired marks in GATE 2021. Let me say his desired marks in GATE 2021 are, let us say, 85 marks. Let us say 85 marks. Now, his mock test performance is like 50, then 55, then 62, then 70, then 65, then 64, then 71, then let us say 75, then let us say 82. These are his mock test performance.
Now suppose he get result as let us say 84 marks. Okay, now this behavior, this is your transient, and this is your steady state, the final score that he gets, and the error is basically 1 mark. Now you understand the significance of the steady state error. What is the difference between steady state and transient, and how is steady state error relevant? Another example let us take in case of instrumentation or measurement. Suppose I want to measure a current. That current is 5 ampere. Now due to certain error in the instrument, instrument measures 4.8 ampere. Then that 0.2 ampere is your steady state error. Let me take another example. Let me take an example of a ammeter. Ammeter, my friend. Suppose this is the display. 1, 2, 3, 4, 5. It is a 10 ampere range ammeter that can measure up to 10 ampere. Okay, this is the ammeter. Now initially my pointer was at 0 position. Now the current that I apply, applied is 5 ampere that I want to measure. So how does my pointer behave? If it is a second order system, my friend, this pointer will go, but it will cross this steady state. It will go up to here. This is the peak overshoot. Then it will oscillate like this, sometimes here, sometimes there. So it will oscillate here like this, again and again, but the oscillation will keep damping out, and let me say the final position is here. Okay, then this difference in the reading is your steady state error. Are you able to get this, my friend? The pointer starts to move from the 0, but it crosses the desired, then comes back, then again crosses, comes back, gradually settles down. So that pointer deflection again and again, that is your transient, and when it finally settles down, that is your steady state. But if that value is different from the desired value, then we get a steady state error. So now you understand how we are relating the transient and the steady state response. What is the significance of transient and the steady state in the actual practical life? This you need to understand. This is very, very important, how this concept is related to your real life application. Okay. अब आते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। यार ये इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या चीज है बेटा? ये एक ऐसा मेथड है जो कि हम पावर सिस्टम में एक सिंगल मशीन पे लगाते हैं इन ऑर्डर टू जज द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो ये डिराइव स्विंग इक्वेशन से ही होता है, ऐसा मत सोचना कुछ अलग है ये स्विंग इक्वेशन से ही डिराइव्ड, बट इसको एक मशीन पे लगा के इस क्राइटेरिया को वी कैन जज इट्स ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। और ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 2 मशीन को सिंगल मशीन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है।
whenever we have two machine either swinging coherently or incoherently, they can be represented as a single machine. ये बात तो आप लोगों ने पढ़ ली है ऑलरेडी, ठीक है, ये बात आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब बेटा इसीलिए कभी अगर कोई आपसे पूछे इक्वल एरिया क्राइटेरिया कहां एप्लीकेबल है, आप कहोगे टू अ सिंगल मशीन और टू टू मशीन सिस्टम, और टू मशीन सिस्टम, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो आप ये कह सकते हो एक मशीन या दो मशीन में लगता है। अगर मल्टी मशीन सिस्टम है तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ स्विंग इक्वेशन, ठीक है, तब न्यूमेरिकल इक्वेशन होता है स्विंग इक्वेशन का। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का मतलब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाले मेथड्स नहीं होते, यूलर्स मेथड आ जाता है इस, या रंगे कुट्टा मेथड आ जाता है, कुछ इस तरह के मेथड्स का यूज करके, कुछ इस तरह के मेथड्स का यूज करके वी विल फिगर आउट द सॉल्यूशन, वी विल फिगर आउट द सॉल्यूशन, तब हम ऐसा करेंगे। बट एक या दो मशीन के लिए इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज बेटर। अब क्या होता है देखो, हमारे पास स्विंग इक्वेशन कुछ ऐसी है। अब ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, PS माइनस PE को कहते हैं PA, विच इज एक्सेलरेटिंग पावर, विच इज एक्सेलरेटिंग पावर। अब यार देखो, आप कहोगे सर अगर मैं कहूं इसको इंटीग्रेट करना है तो आप कहोगे सर सिंपल है ना, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। बेटा इतना सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है सिंपल? क्योंकि जो राइट हैंड साइड है ना, कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेटिंग पावर में PE आ रहा है। PE क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर, वो होती है P मैक्स साइन डेल्टा। क्या होती है? P मैक्स साइन डेल्टा। यानी राइट हैंड साइड पे भी डेल्टा की टर्म है, ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करके निपटा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, देखते चलो, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 इंटू डी डेल्टा बाय dt। आपको आता है ना परफेक्ट डेरिवेटिव जो बनाते हैं, जल्दी बताओ, ये बात समझ आ रही है? परफेक्ट डेरिवेटिव बना रहा हूं जो मैं, 2d डेल्टा बाय dt से मल्टीप्लाई करके आई एम मेकिंग इट अ परफेक्ट डेरिवेटिव। ये बात कितने बच्चों को चमक रही है? जल्दी से बताओ कि परफेक्ट डेरिवेटिव बना रहे हैं सर यहां पे, जल्दी बोलो यार। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, ये आ गया ना, ये बन गई इक्वेशन भाई, ये बन गई इक्वेशन। देखो ये 2d डेल्टा बाय dt, देखो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, d डेल्टा बाय dt का स्क्वायर 2 टाइम्स d डेल्टा बाय dt, फिर d डेल्टा बाय dt का भी डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से यही बनेगा। ठीक है, अब ये मैं m नीचे ले गया हूं क्या, तो यहां से m हटाओ ना यार, तुम लोग बता ही नहीं रहे हो। चलो ये हो गया। अब मैं कहता हूं, और देखो ये वाला ना स्टेप याद रखना भैया, ये जो 2d डेल्टा बाय dt किया है, ये आपका गेट में एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ये स्टेप लग गया था, समझ रहे हो, गेट स्टेप लग गया था। ठीक है, बात समझ आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये वाला स्टेप लग गया था गेट के अंदर एक क्वेश्चन में, तो ये स्टेप याद रखना है। अब इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड्स मेरे भाई, देखो इंटीग्रेट अगर करेंगे बोथ साइड्स, ठीक है। अब यार देखो dt यहां से हटा दो ना, फिर
dt इंटीग्रेशन में भी आ रहा है और डिफरेंशिएशन में भी आ रहा है। लो, ऐसे ही अगले वाले इंटीग्रेशन में से फिर dt हटा दो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, देखो इनिशियली डेल्टा नॉट से स्टार्ट हुआ और ये स्टार्ट हुआ 0 से। अब किसी एंगल डेल्टा पे इसकी वैल्यू आ गई मान लो। अब आप कहोगे इनिशियली सर आपने वैल्यू 0 कैसे लिख दी? आपने इनिशियली सर वैल्यू 0 कैसे लिख दी? आपको कैसे पता कि जब इनिशियल एंगल था तो d डेल्टा बाई डी टी 0 था? तो देखो, जब हमने while deriving swing equation, मैंने आपको एक चीज बताई थी, while deriving swing equation that d delta by dt is ओमेगा माइनस ओमेगा एस। तो यार इनिशियली क्या था, स्पीड वॉज इक्वल टू सिंक्रोनस, तो d डेल्टा बाई डी टी 0 था। समझ रहे हो, इनिशियली स्पीड सिंक्रोनस पे थी तो d डेल्टा बाई डी टी 0 था। अब देखो यार, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या कहता हूं यार, अब मैं देखो यहां पे क्या कहता हूं, फाइनली ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा एस, दैट इज d डेल्टा बाई डी टी मस्ट बी 0। अब d डेल्टा बाई डी टी 0 होने का मतलब है कि ये जो इंटीग्रेशन है ना, दिस मस्ट बी 0। अब बेटा यही कहलाता है इक्वल एरिया क्राइटेरिया। ये इंटीग्रेशन का 0 होना ही क्या कहलाता है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया। इक्वल एरिया क्राइटेरिया। अब आप कहोगे सर इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्यों बोला? आपको बोलना चाहिए था 0 एरिया क्राइटेरिया। एरिया 0 आया ना सर एक्सेलरेटिंग पावर का, तो आपको तो 0 एरिया क्राइटेरिया बोलना चाहिए था। आपने इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्यों बोला, इसका मैं जवाब देता हूं। देखो, कोई भी इंटीग्रेशन 0 तब होता है जब इंटीग्रेशन में जितना पॉजिटिव इंटीग्रेशन आए उतना ही नेगेटिव इंटीग्रेशन आए। जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तब बेटा आपका टोटल इंटीग्रेशन बनता है 0। क्या बनता है टोटल इंटीग्रेशन? 0। तो इसीलिए हमने यहां पे ये बोला, इक्वल एरिया क्राइटेरिया। बिल्कुल सही लिखा है अर्पण बेटा, पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया। पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया। ठीक है भाई। अब देखो, मैं यहां पे आपको ये ग्राफिकली भी शो करता हूं यार। अभी देखो, जैसे मैंने आपको ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का ग्राफ दिखाया था, मान लो ये इनिशियल स्टेडी स्टेट था, और भाई ये हमारा न्यू स्टेडी स्टेट है। अब ग्राफ कैसा आता है यार, देखना। इस टाइप से ही आता है ना, ऐसे सेटल हो जाता है। अब यहां देखो यार, यहां पे d डेल्टा बाई डी टी 0 है, 0 है ना।
तो बेटा एक चीज समझना, सबसे पहले जब इस टाइप का अंडर डैम्प्ड ग्राफ बनता है, जब इस टाइप का अंडर डैम्प्ड ग्राफ बनता है, तो सबसे पहली चीज हम क्या समझते हैं, दैट द फर्स्ट ओवरशूट इज द मैक्सिमम ओवरशूट, है ना। पहला ओवरशूट सबसे बड़ा ओवरशूट होता है बेटा, इसीलिए स्विंग इक्वेशन या इक्वल एरिया क्राइटेरिया सिर्फ यहीं तक की बात करता है, वो सिर्फ इस रीजन की बात करता है, क्योंकि बेटा अगर इस रीजन में तुमने सिचुएशन संभाल ली तो आगे तो संभल ही जानी है, सिर्फ इस रीजन की। इसको कहते हैं फर्स्ट स्विंग। क्या कहते हैं, फर्स्ट स्विंग, पहला स्विंग है मिनिमम से मैक्सिमम तक, ठीक है। फिर ये वाला जो है इसको कहते हो सेकंड स्विंग। तो हम कहते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ध्यान से सुन लेना, इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज द फर्स्ट स्विंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, यानी पहला स्विंग अगर स्टेबल है, पहली बार जब ये चढ़ा था तो ये कहीं जाके लौट रहा है, तो बेटा आगे के सारे स्विंग स्टेबल होंगे। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द इक्वल एरिया क्राइटेरिया। यही मतलब है बच्चे आपके इक्वल एरिया क्राइटेरिया का, कि आगे आने वाले सारे स्विंग स्टेबल रहेंगे ऑटोमेटिकली, दे विल ऑलवेज बी स्टेबल। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई ना आप लोगों को, ठीक है, समझ गए। तो मैंने बस यही बोला था कि फाइनली भी डी डेल्टा बाई डी टी जीरो जाना चाहिए, तभी सिस्टम स्टेबल है। यानी डेल्टा ऐसा ना हो लगातार बढ़ता रहे, डेल्टा कहीं जाके मुड़े, और जहां मुड़ेगा वहीं स्लोप जीरो, जहां मुड़ेगा वहीं पे स्लोप जीरो। तो अगर डेल्टा लौट के आ रहा है तो स्टेबल, डेल्टा अगर लौट के आ रहा है तो माने वो सेटल हो ही जाएगा। अगर ये बढ़ता चला गया होता ऐसे तो ये सिस्टम अनस्टेबल था। अब मुझे बताओ, ये सब लोगों को चमका, ये सब लोगों को चमका। अगर डेल्टा फाइनल स्टेडी स्टेट पे आना चाहता है तो समवेयर इट हैज टू कम बैक, समवेयर इट हैज टू टर्न बैक। चल अब देखो, इक्वल एरिया क्राइटेरिया में हम लोग यही कह रहे हैं कि यहां पे देखो डी डेल्टा बाई डी टी जीरो था, और यहां पे भी डी डेल्टा बाई डी टी जीरो आया है। तो हमने क्या बोला है कि अगर आपका फाइनली डी डेल्टा बाई डी टी जीरो आ जाए देन द सिस्टम इज स्टेबल। और इस केस में जहां डी डेल्टा बाई डी टी जीरो बना ही नहीं, डेल्टा बढ़ता चला गया, डेल्टा बढ़ता चला गया, तो वो क्या है, अनस्टेबल है। दिस वन इज एक्चुअली अनस्टेबल एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टेबल सिस्टम, ठीक है। हम क्या कहते हैं, दूसरी बात, इक्वल एरिया क्राइटेरिया, इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज फर्स्ट स्विंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, फर्स्ट स्विंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ये बात क्लियर है। फर्स्ट स्विंग का मतलब क्या है, जब वो पहली बार मैक्सिमम तक जाएगा उस पूरे रास्ते को कहते हैं फर्स्ट स्विंग, ठीक है ना, समझ आ गया बढ़िया तरीके से। Unacademy. Let's crack it. अब कल मैंने आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जरूर पूछा था कि वाई रिएक्टिव पावर इज अनडिजायरेबल। रिएक्टिव पावर अनडिजायरेबल मेरे भाई क्यों होती है, या इंडक्टर कैपेसिटर अनडिजायरेबल क्यों होते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है, हम ये कहते हैं ड्यू टू L and C a phase shift is produced between V and I, between V and I, जिस कारण से जो हमारी पावर आती है, जो एवरेज पावर आती है, मैंने आपको एवरेज पावर का सिग्निफिकेंस भी बताया है। एवरेज पावर इज रिलेटेड टू एनर्जी ट्रांसफर। एवरेज पावर जो आती है वो मेरे भाई आती है VRMS IRMS कॉस वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल। अब इस वजह से क्या हुआ, जो सिस्टम के अंदर पावर आनी चाहिए थी
जो पावर आनी चाहिए थी एक्सपेक्टेड पावर, एक्सपेक्टेड पावर क्या थी? एक्सपेक्टेड पावर थी मेरे भाई VRMS IRMS। तो इसका मतलब क्या हुआ? फेज शिफ्ट आने से, या ये कह दो ड्यू टू L एंड C, ड्यू टू L एंड C पावर हमें एक्सपेक्टेड से कम मिली, पावर हमें एक्सपेक्टेड से कम मिली। और किसकी वजह से मिली? ये कॉस के फैक्टर की वजह से। ये कॉस का फैक्टर 1 से छोटा हो गया तो जो पावर मिलनी चाहिए थी उससे कम पावर हम ले पाए। अब अगर भैया उससे कम पावर ले पाए और उतनी पावर लेना चाहते हो तो या तो V बढ़ाओ या तो I बढ़ाओ। V बढ़ाओगे तो दिक्कत यह है कि सिस्टम डैमेज हो सकता है, इंसुलेशन डैमेज हो सकती है। I बढ़ाओगे तो हीटिंग बढ़ जाएगी तो भी सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो मेरे भाई इसका मतलब यह हुआ जितनी पावर आप सिस्टम से ले सकते थे उतनी नहीं ले पाए, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? इंडक्टर और कैपेसिटर। ये गुनाह किसका है? इंडक्टर कैपेसिटर का। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर मुजरिम कौन है? इंडक्टर और कैपेसिटर हैं। ना ये फेज शिफ्ट आता, ना ये पावर फैक्टर आता, और ना ही आपकी पावर एक्सपेक्टेशन से कम मिलती। तो मेरे भाई इसीलिए इंडक्टर कैपेसिटर अनडिजायरेबल होते हैं, बिकॉज दे गिव द पावर लेस देन द एक्सपेक्टेड पावर। तो दीज आर द कल्प्रिट्स, दीज आर द कल्प्रिट्स। कहानी कुछ समझ आ रही है? इन्होंने ही आपकी पावर को कम किया है, इन्होंने ही आपकी पावर को जरूरत से कम कर दिया है, तो ये कल्प्रिट हुए। अब देखो मेरे भाई हम लोग क्या मानते हैं, मैंने ये चीज आपको प्रूव किया है कि इंडक्टर कैपेसिटर एसी में कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करते, कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करते, जितनी एनर्जी लेते हैं उतनी ही लौटा देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, रिएक्टिव पावर को हाइपोथेटिकली डिफाइन किया, किसके लिए? इंडक्टर कैपेसिटर। तो आप ये बोलो इंडक्टर कैपेसिटर की वजह से पावर कम है, या ये बोलो रिएक्टिव पावर की वजह से पावर कम है। दोनों बातें एक ही बात को बताती हैं, दोनों बातें मेरे भाई एक ही बात को बताती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ड्यू टू रिएक्टिव पावर रियल पावर इज लेस देन एपरेंट पावर, क्योंकि रिएक्टिव पावर किस में आती है? L और C में। तो हम ये चाहते हैं पावर फैक्टर must be as close to unity, as close to unity as possible, as close to unity as possible, क्योंकि रियल पावर देखो होती है S cos phi, S cos phi। तो cos phi मेरे भाई अगर 1 के करीब आया तो P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S। ये चीज डिजायरेबल है, पावर फैक्टर 1 के करीब आए। तो अब देखो यहां से ये तो समझ आ गया आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव कि रिएक्टिव पावर इविल क्यों है। रिएक्टिव पावर इविल इसलिए है क्योंकि वो आपको एक्सपेक्टेड पावर के बराबर पावर नहीं मिलने देती। इंडक्टर कैपेसिटर वोल्टेज करंट में फेज शिफ्ट पैदा करके आपकी पावर को कम कर देते हैं, इसीलिए ये इविल है। अब बात है नेसेसरी क्यों है। अब ये नेसेसरी क्यों है, तो पहले मैं मशीन्स का एग्जांपल ले रहा हूं, पहले मैं मशीन्स का एग्जांपल ले रहा हूं। देखो मेरे भाई क्या होता है, इन एनी मशीन, in any machine input and output are magnetically coupled, are magnetically coupled। इसका मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में कौन एग्जिस्ट करता है, कौन एग्जिस्ट करता है मेरे भाई? एग्जिस्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड। इनपुट और आउटपुट के बीच में एग्जिस्ट करती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, मैग्नेटिकली कपल्ड। अब मेरे भाई हम ये जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड, हम ये जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड
is produced by inductor, is produced by inductor। जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां इंडक्टर की बात जरूर होगी, जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां इंडक्टर की बात जरूर होगी, तो इंडक्टर आ गया। अब हम क्या जानते हैं, इन एसी इंडक्टर कंज्यूम्स रिएक्टिव पावर, इंडक्टर कंज्यूम्स रिएक्टिव पावर। अब जरा सारी स्टेटमेंट्स को जोड़ो। अगर मशीन चलानी है मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंडक्टर चाहिए, इंडक्टर के लिए रिएक्टिव पावर चाहिए। तो क्या आप तीनों स्टेटमेंट को जोड़ के आप ये नहीं कह सकते मशीन चलाने के लिए रिएक्टिव पावर चाहिए? क्या ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता दैट यू नीड रिएक्टिव पावर, दैट यू नीड रिएक्टिव पावर टू ऑपरेट द मशीन? देखो मेरे भाई, सीधा सा फंडा समझो कि जहां कहीं ऑल्टरनेटिंग करंट है और इंडक्टर कैपेसिटर है वहां रिएक्टिव पावर तो आनी है। जहां कहीं एसी है और एलसी है वहां रिएक्टिव पावर आनी है। तो अगर आप चाहते हो रिएक्टिव पावर से बचना, अगर आप चाहते हो रियल पावर इक्वल टू एपरेंट पावर, तब मेरे भाई उसके लिए आपको L और C को हटाना पड़ेगा, L और C को हटाना पड़ेगा। यानी अगर ऐसा कोई सिस्टम बन सकता है जहां ना इंडक्टर हो, जहां पे ना कैपेसिटर हो, तो वहां पे आप रिएक्टिव पावर से छुटकारा पा सकते हैं, वहां पे आप रिएक्टिव पावर एंड कर सकते हैं, वहां पे आप रिएक्टिव पावर को एंड कर सकते हैं मेरे भाई। इसीलिए जब तक इंडक्टर कैपेसिटर रहेंगे तब तक रिएक्टिव पावर रहेगी, तब तक रिएक्टिव पावर रहेगी। अब देखो क्या होता है, एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल लेके समझाता हूं। ट्रांसफॉर्मर के अंदर मेरे भाई क्या होता है, ये होती है सप्लाई वोल्टेज, ये होता है फ्लक्स और ये होता है आई म्यू। तो देखो यहां पे अगर आप इस फेजर डायग्राम को देखेंगे तो आप ऐसा बोलेंगे आई म्यू लैग्स V1 बाय 90 डिग्री। तो मेरे भाई अगर यहां रिएक्टिव पावर निकाली जाए V1 आई म्यू कॉस वोल्टेज एंगल इज 90, करंट एंगल इज 0, ये आ गई ना रिएक्टिव पावर। तो हम ये भी तो कह सकते हैं इस डायग्राम को देख के कि आई म्यू, हम ये कह सकते हैं आई म्यू नीड्स Q टू बी प्रोड्यूस्ड। आई म्यू को रिएक्टिव पावर की जरूरत है और आई म्यू क्या है, आई म्यू होता है मैग्नेटाइजिंग करंट। आई म्यू क्या होता है बेटा आपका, मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी वो करंट जो एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, जो करंट एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है वो करंट होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, वो करंट होता है मैग्नेटाइजिंग करंट। और मैग्नेटाइजिंग करंट के साथ पावर कौन सी एसोसिएटेड है, रिएक्टिव पावर। मैग्नेटाइजिंग करंट के साथ पावर कौन सी एसोसिएटेड है, रिएक्टिव पावर। तो दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के ये कह दो टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड in transformer we need reactive power। अब समझे, देखो एक चीज सोचो, अच्छा यहां पे साइन आएगा, सॉरी ये चीज करेक्ट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। हाँ अब देखो एक चीज सोचो, हर बार ये कहना कि भाई करंट फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये सारी चीजें मुश्किल हो गई।
आप तो सीधा बोलो रिएक्टिव पावर लेके मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि रिएक्टिव पावर की टर्म्स में किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना मच इजियर है एज कंपेयर टू हर बार करंट और वोल्टेज पे जाना। इसीलिए रिएक्टिव पावर डिफाइन करना बहुत बहुत जरूरी है। जबकि फिजिकल लाइफ में आप रिएक्टिव पावर को महसूस नहीं कर सकते, आप रिएक्टिव पावर को देख नहीं सकते, इसीलिए रिएक्टिव पावर एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं अब डीसी मशीन का। अब मेरे भाई डीसी मशीन के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड is produced by field winding, which is excited by DC source, अब मेरे भाई डीसी में कोई रिएक्टिव पावर नहीं होती। इन डीसी देयर इज नो रिएक्टिव पावर। तो ऐसा मत सोचना हमेशा फ्लक्स बनाने के लिए या मैग्नेटाइजिंग करंट बनाने के लिए, ठीक है, हमेशा फ्लक्स बनाने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए रिएक्टिव पावर चाहिए होगी। नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए बस करंट चाहिए। जहां करंट आ गया वहां बायट-सेवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड बननी ही बननी है। लेकिन अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है तब आप बात करते हो इंडक्टेंस की, और जहां बात करोगे इंडक्टेंस की, एसी की, वहां आ जाएगी रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर की बात कब करोगे? जब एक ऑल्टरनेटिंग करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट प्लस इंडक्टर will give you reactive power. Alternating current plus capacitor will give you reactive power. लेकिन अगर डीसी करंट है तो कोई रिएक्टिव पावर संबंधित बात नहीं की जाएगी। रिएक्टिव पावर से रिलेटेड कोई बात नहीं की जाएगी। इसीलिए मेरे भाई आप ये कह सकते हो all machine work on magnetic field, ठीक है। अब इसमें से जो भी आपकी एसी मशीन्स हैं उसमें तो बात होगी रिएक्टिव पावर की, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है इंडक्टर है तो रिएक्टिव पावर की बात तो करनी पड़ेगी एसी में। याद रखो एसी में, डीसी में नहीं। डीसी मशीन के अंदर कोई क्यू रिलेटेड डिस्कशन नहीं किया जाता। समझ आया? नेसेसरी क्यों है? क्योंकि जहां इंडक्टर वहां रिएक्टिव पावर। बिना इंडक्टर के मशीन चलेगी नहीं, और बिना इंडक्टर के नहीं चलेगी तो आप ये भी कह सकते हो बिना रिएक्टिव पावर के भी नहीं चलेगी। तो इसीलिए ये नेसेसरी है। ईविल क्यों है ये मैंने समझाया। ईविल क्यों है? क्योंकि पावर एक्सपेक्टेशन से कम हो गई। नेसेसरी क्यों है? क्योंकि मशीन चलती है इंडक्टर से। अब आ जाओ ट्रांसमिशन पे। अब मेरे भाई ट्रांसमिशन लाइन के सर्किट में वायर में आपको क्या दिखाना होता है? इंडक्टेंस दिखाना होता है। क्यों बंधु? ट्रांसमिशन लाइन का, शॉर्ट लाइन का सर्किट कुछ ऐसे ही बनाते हो। अब बात समझ आ रही है? अब मेरे भाई जब ट्रांसमिशन लाइन का ये सर्किट है तो इन एनी ट्रांसमिशन लाइन देयर इज इंडक्टेंस ऑफ लाइन। अब देखो इंडक्टेंस आ गई, दूसरी क्या चीज चाहिए? ऑल्टरनेटिंग करंट। दूसरी क्या चीज चाहिए? ऑल्टरनेटिंग करंट।
तो if alternating current propagates, if alternating current propagates, L consumes Q, है ना। अब आप तो मेरे भाई ये कह देते हो कि रिएक्टिव पावर के बिना लाइन में पावर ही नहीं फ्लो करेगी। आप तो ऐसा कह देते हो कि बिना रिएक्टिव पावर के लाइन में पावर ही फ्लो नहीं करेगी। कई लोग इतना तक कह देते हैं रिएक्टिव पावर इज अ कैरियर ऑफ रियल पावर। अब मैं बताऊं ये गलत क्यों है। मुझे बताओ एचवीडीसी में कौन सी रिएक्टिव पावर होती है। एचवीडीसी में डीसी करंट जाता है, एचवीडीसी में डीसी करंट जाता है। डीसी करंट अगर जाता है तो कोई रिएक्टिव पावर तो नहीं है, यानी रियल पावर कैन फ्लो विदाउट द एड ऑफ द रिएक्टिव पावर, विदाउट द एड ऑफ द रिएक्टिव पावर। ये तो जहां कहीं इंडक्टर आ गया वहां रिएक्टिव पावर की बात आ गई। माधवी कह रहे हैं रिएक्टिव पावर इमेजिनरी है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इमेजिनरी है? नहीं मेरे भाई, इंडक्टर तो रियल है ना, इंडक्टर तो रियल है, इंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड है, बट इंडक्टर के लिए जो पावर डिफाइन की गई वो इमेजिनरी है। इंडक्टर कोई पावर नहीं लेता, उसकी पावर काल्पनिक है, ये समझो, उसकी पावर इमेजिनरी है। लेकिन इंडक्टर इमेजिनरी नहीं है, इंडक्टर है। इंडक्टर है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो देखो हम लोग ये कहते हैं रियल पावर कैनॉट फ्लो विदाउट रिएक्टिव पावर। मेरे भाई कह देना एकदम गलत बात है, हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों? इसके दो काउंटर एग्जाम्पल देना, डीसी मशीन और डीसी ट्रांसमिशन। तो आपको क्या समझना है, रिएक्टिव पावर कहां डिफाइंड होगी? अगर ऑल्टरनेटिंग करंट प्लस एल है या ऑल्टरनेटिंग करंट प्लस कैपेसिटर है, दोनों ही केसेस में डिफाइन करना पड़ेगा क्यू, दोनों ही केसेस में डिफाइन करना पड़ेगा क्यू। ठीक है। अब मेरे भाई देखो, अगर ये आपका डाउट आ रहा है एल डिलीवर लीडिंग रिएक्टिव पावर, ये कैसे? तो इसके लिए आप लास्ट वाला लेक्चर देखो, लास्ट वाला लेक्चर देखो, कॉम्प्लेक्स पावर पार्ट 3। वहां मैंने ये डिराइव किया है कि इंडक्टर एब्जॉर्ब्स लैगिंग पावर, इंडक्टर डिलीवर्स लीडिंग पावर। ठीक है, तो ये मैंने आपका वहां डिराइव कराया, पार्ट 3 जरूर देखना। ये बात क्लियर हो गई? तो रिएक्टिव पावर नेसेसरी इविल क्यों है? रिएक्टिव पावर नेसेसरी इविल क्यों है? क्योंकि जब कभी किसी एसी सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो रिएक्टिव पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और बिना मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं, बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो विदाउट मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करते। तो वहां क्यू डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन यह ध्यान रखो, रिएक्टिव पावर वास्तविक नहीं है, इट इज प्योरली इमेजिनरी, इट इज प्योरली इमेजिनरी। अब आते हैं बात पे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की। अब कई बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन ये आता है, सर जब रिएक्टिव पावर है नहीं तो रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? अब देखो मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई, in any system only R consumes power, है ना, L and C do not consume any power। ठीक है, समझ आई मेरी बात? अब देखो क्या होता है, ड्यू टू थीटा वी माइनस थीटा आई, P इज लेस देन S, रियल पावर इज लेस देन एपरेंट पावर। ठीक है, ड्यू टू थीटा वी माइनस थीटा आई, P इज लेस देन L, दैट इज ड्यू टू L and C
तो मेरे भाई ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट क्या होता है या रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन क्या होती है? हम ये कहते हैं इफ L and C can cancel the effect of each other, then theta V minus theta I reduces and P becomes closer to L. एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूं मेरे भाई। देखो जैसे ऐसा मान लो, एक प्यारा सा छोटा सा नेटवर्क ले रहा हूं, RLC। ठीक है भाई। अब देखो हम क्या जानते हैं, ये तीनों कंपोनेंट पैरेलल में है, ये तीनों कंपोनेंट पैरेलल में है। तो मैं रेफरेंस बना लेता हूं सबसे पहले मेरे भाई वोल्टेज को, ध्यान से समझना वोल्टेज को। अब मैं क्या कहता हूं कि जो रेजिस्टेंस का करंट है वो तो वोल्टेज के सेम फेज में आ गया, इंडक्टर का करंट वोल्टेज से लैग कर गया और कैपेसिटर का करंट लीड कर गया। अब मैं कहता हूं बाय KCL, अब मैं क्या कहता हूं बाय KCL I इज इक्वल टू IR प्लस IL प्लस IC। ठीक है। अब यहां ये देखो, ये जो IL और IC हैं ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट हैं। अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो दे कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट, दे कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। अगर ये एक दूसरे को कट कर दें, एक दूसरे से कम हो जाएं, जैसे ये मान लो अगर ये रिजल्टेंट आ जाए आपके पास, जैसे मान लो ये आ गया, तो ये आया ना सप्लाई करंट। अगर मान लो कैपेसिटर ना होता, अगर कैपेसिटर ना होता तो आप IR और IL को ऐड कर रहे होते, ये IS होता विदाउट कैपेसिटर और ये होता विद कैपेसिटर। अब देखना जरा फेज शिफ्ट किस में कम है, फेज शिफ्ट सेकंड केस में कम है ना, फेज शिफ्ट आपकी सेकंड केस में कम है, सेकंड केस के अंदर कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय द यूज ऑफ कैपेसिटर, बाय द यूज ऑफ कैपेसिटर थीटा वी माइनस थीटा आई reduces, power factor increases and real power becomes approximately equal to apparent power। यानी जो पावर निकल रही है, जो पावर मिल रही है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के आसपास है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन के आसपास है। लेकिन अब देखो हर बार इतना तामझाम थोड़ी करेंगे, हर बार इतना तामझाम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कैपेसिटर डिलीवर्स Q। देखो अब आसान तरीका, इंडक्टर एब्जॉर्ब्स Q। so if L and C exchange power, L and C exchange reactive power, source will only supply real power, सोर्स विल ओनली सप्लाई रियल पावर और S हो जाएगा P के बराबर। समझ आई बात? अब ये चीज समझना देखो कितना आसान हो गया।
मैं ये कह दूं इंडक्टर कैपेसिटर रिएक्टिव पावर आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, कैपेसिटर दे रहा है, इंडक्टर ले रहा है, तो रिएक्टिव पावर सोर्स को नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि इंडक्टर कैपेसिटर ने आपस में निपटा लिया काम। अब सोर्स को देनी नहीं पड़ेगी, सोर्स को देनी नहीं पड़ी तो सोर्स से आने वाली पावर कौन सी हुई फिर? रियल पावर। तो इसका मतलब टोटल पावर इक्वल टू रियल पावर, टोटल पावर इज इक्वल टू रियल पावर। ये बात क्लियर हुई? तो इस वजह से ये होता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट या रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन। तो रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन मेरे भाई एक्चुअल में एल और सी के करंट आपस में एक दूसरे का फेज काटते हैं, आपस में एक दूसरे के करंट को कैंसिल करते हैं, बट समझना आसान होता है क्यू की टर्म्स में, इसीलिए वहां रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन की बात की जाती है। अब बातें समझ आ रही हैं? क्यू हमेशा हमारी जिंदगी आसान कर रहा था, हमारे लिए कंसेप्ट आसान कर रहा था, वरना हर बार फेजर में जा जाके आपको फेजर ड्रॉ कर करके रिजल्ट निकालना पड़ता। बट विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, सारी चीजें इजी हो गई रिएक्टिव पावर डिफाइन कर देने से। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर डिफाइन करना मेरे भाई हमारे लिए एक तरीके से वरदान है। इट इज अ बून फॉर अस व्हेन वी डिफाइन इट बिकॉज इट मेक्स लाइफ इजी, बट माय फ्रेंड्स इट इज नॉट समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल। ये बात अपने माइंड के अंदर आपको बिठानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो जब आप नेटवर्क के क्वेश्चंस वगैरह करोगे मेरे भाई तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट की तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको तो बस क्या चाहिए रहेगा कि एपरेंट पावर क्या होती है, आपको तो बेसिक बेसिक चीजों से मतलब है। लेकिन ये जो लेक्चर सीरीज मैंने लिया है, ये मैंने लिया है आपके कंसेप्ट्स को सॉलिड करने के लिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो। अगर आप रियल पावर, रिएक्टिव पावर, ये सब चीजों को फील नहीं करते तो आप एक असली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले मैं कई बार बता चुका हूं, ये जितनी बार बताए जाएं उतने कम है। काम देखो फॉर्मूले ही आने हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे देश के जो टीचर्स हैं उन्हें भी फॉर्मूले से आगे नहीं पता, ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ये बातें हो गई। और हमने ये भी देख लिया कि लैगिंग पावर फैक्टर पे Q पॉजिटिव आता है और लीडिंग पावर फैक्टर पे Q नेगेटिव आता है। और मैंने आपको इंडक्टर कैपेसिटर का नेचर भी एक्सप्लेन कर दिया, इंडक्टर कैपेसिटर का नेचर भी एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरे भाई देखो मोटर जनरेटर में फिर कभी मैं आपको समझाऊंगा लीडिंग लैगिंग का फंडा, कि रिएक्टिव पावर डिलीवर, एब्जॉर्ब, ये सब चीजें जो सिंक्रोनस में आपको पढ़ते हो ना, ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, वो बहुत बढ़िया से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन चीजों का मतलब क्या होता है, कि ओवर एक्साइटेड क्या है, अंडर एक्साइटेड क्या है। लेकिन अभी के लिए आपको ये सारी नॉलेज अगर है तो आप क्वेश्चन तो इन सब चीजों से सॉल्व कर दोगे। लेकिन मेरे भाई जब कभी डिस्कशन का हिस्सा बनते हो, कहीं चार लोगों में बैठ के अपना पॉइंट रखते हो, तो मैं ये मानता हूं ना यार, जब आपको कंसेप्ट की फील आती है, फील आने का मतलब क्या होता है, पहले मेरे टीचर भी मुझे बोलते थे फील आना, अब मुझे समझ नहीं आता ये फील का मतलब क्या होता है, लेकिन अब मैं समझता हूं। फील का मतलब ये होता है जब मेरे भाई आप उस चीज को विजुअलाइज कर पाओ और आप उस चीज को खुद प्रिडिक्ट कर पाओ, वो आपके लिए एक कॉमन सेंस बन जाए, वो आपके लिए एक लॉजिकल चीज बन जाए, तब कह सकते हो कंसेप्ट की फील आपको है। एज लॉन्ग एज आपको वो रटना पड़े, आपको वो याद रखना पड़े, वो फील नहीं आई। फिर फील तब आई जब आपको याद भी ना रखना पड़े, वो ऑटोमेटिकली माइंड के अंदर फिट हो गया है और वो लॉजिक है, वो कॉमन सेंस है आपके लिए, है ना। जैसे खाना खाने से एनर्जी आती है, इतना इजी हो जाए जब कोई कंसेप्ट, तब हम कहते हैं आपको उसकी फील आ गई।
ठीक है, इतना इजी करना है चीजों को। ये बात क्लियर है? Unacademy. Let's crack it. सबसे पहले शुरू करते हैं यार एमसीबी, एमसीसीबी और आरसीसीबी का डिस्कशन, लेकिन शुरुआत करेंगे एमसीबी से। तो एमसीबी क्या होता है? फुल फॉर्म ज्यादातर बच्चे जानते होंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर क्यों? क्योंकि छोटा सा सर्किट ब्रेकर है, बच्चा सा, छोटा सा, बाबू सा। और बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर होते हैं पावर सिस्टम में जो होते हैं, लेकिन ये अक्सर आपने घर के अंदर देखा होगा, आपके बॉक्स पे ढक्कन लगा रहता है, उसके अंदर बहुत सारी ढेर सारी एमसीबीज होती हैं, है ना। किसी से लाइट बंद हो जाती है, किसी से पंखा ऑफ हो जाता है, तो किसी से हाई पावर वाले सॉकेट डिसेबल हो जाते हैं, एसीज बंद हो जाते हैं। इस तरह की अलग अलग एमसीबीज होती हैं। और आपने ये भी देखा होगा जो हाई पावर वाली एमसीबी होती है उसका कलर और स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है बाकी की सभी एमसीबी से, क्योंकि वो ज्यादा करंट सप्लाई कर रही है, उसके थ्रू ज्यादा करंट पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली हायर रेटिंग का एमसीबी लगाना पड़ेगा। जितने भी पावर सॉकेट्स हैं, पावर सॉकेट में आप एसी चलाते हो, गीजर चलाते हो, कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन चलाते हो, वाटर हीटर या बॉयलर भी लगा सकते हो, ये सारी चीजें आपकी हाई पावर सॉकेट में जाती हैं, उनके लिए एमसीबी अलग लगाया जाता है एज कंपेयर टू दी अदर एमसीबी। तो एमसीबी क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है विच इज एनक्लोज्ड इन अ मोल्डेड इंसुलेटिंग मटेरियल। कहने का मतलब ये है, ये जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरा इंसुलेटिंग मटेरियल है और मोल्डेड है, यानी कि मोल्ड से बनाया गया है। ऐसा नहीं है इसके अलग अलग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट किया गया है, पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज ऐसा ही क्रिएट किया जाता है। इंसुलेटिंग इसलिए होता है बेटा कि अंदर अगर कोई फॉल्ट आ जाए और आप इसे टर्न ऑन टर्न ऑफ करने जाओ, अक्सर आपने देखा होगा ये डाउन हो जाती है, नीचे गिर जाती है, फिर हम इसे उठाने जाते हैं। हम कहते हैं ना घर में लाइट चली गई, हो सकता है एमसीबी गिर गई हो, एमसीबी रेज कर दो, तो ये पूरे स्ट्रक्चर से आपको झटका ना लगे, ये हमारा मेक श्योर करना है, ठीक है। द मेन फंक्शन इज टू स्विच द सर्किट। ओपन करना होता है इसे सर्किट को जब कभी इसके अंदर से जाने वाला करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सीड कर जाए, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली डाउन होती है, कर सकते हो आप हाथ से भी डाउन, ये नहीं कह रहा बेटा उस पर लटक भी जाओगे तो नीचे नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, कुछ समय बाद इसको ऑन कर लेते हैं। जैसे क्या हुआ, मान लो कि अचानक से हाई वोल्टेज या हाई करंट आया, अब ये नीचे गिर गई, अब मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, फिर मुझे लगेगा यार चलो अब जो भी ट्रांजिएंट था, जो भी प्रॉब्लम थी वो चली गई होगी, दोबारा उठा के देखते हैं। दोबारा उठाएंगे, अगर अभी भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है फिर गिरेगी, फिर आप उठाओगे फिर गिरेगी। जब 2-3 बार गिर जाते हैं तो हम समझ जाते हैं देयर इज सम सीरियस इशू, अब हमें इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा, चीजें चेक करानी पड़ेंगी कि ये क्यों गिर रही है। और इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, सबसे पहले ये पता लगाता है जो एमसीबी आपकी गिर रही है वो क्या कंट्रोल करती है, बाय हिट एंड ट्रायल, ऑन ऑफ करके देखता है कि एमसीबी क्या चीज कंट्रोल कर रही है, और फिर वो उस डिवाइस को पर्टिकुलरली चेक करता है। एक बार क्या हुआ यार, हमारे ये जो स्टूडियो है इसके अंदर यूपीएस लगाया हुआ है अनअकैडमी वालों ने, ताकि ये टीवी ना बंद हो, आप लोगों की स्टडीज ना रुकें, टीवी और इस कमरे की लाइटिंग चलती रहे इवन व्हेन द सप्लाई गोज ऑफ। अब ये जो यूपीएस है ना, इसका एक मॉसफेट उड़ गया। यूपीएस क्या है, एक इन्वर्टर ही तो है, तो इसके अंदर मॉसफेट होता है, तो मॉसफेट उड़ गया माने जल गया, है ना, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ता जाए, तो जल गया मॉसफेट। तो उस चक्कर में जो ये यूपीएस जिस सॉकेट में कनेक्टेड है उसके करस्पॉन्डिंग एमसीबी डाउन आ गई। अब भाई मैंने 3 बार 4 बार ट्राई किया लेकिन वो अप हुई नहीं। इस चक्कर में उस दिन मेरी क्लासेस भी नहीं लग पाई, तो जब मैंने उसको बुलाया इलेक्ट्रीशियन को, उसने सबसे पहले ये चेक किया कि गड़बड़ कहां है, और गड़बड़ एक बार फिगर आउट करने के बाद फिर उसने यूपीएस को चेक किया और बताया इसका मॉसफेट जल चुका है, मॉसफेट रिप्लेस किया जाएगा। तो दैट इज हाउ वी डिकोड द फॉल्ट इन आवर डोमेस्टिक केसेस। अब ये वर्क कैसे करती है, देखो यहां ऊपर वाले सॉकेट से करंट आ रहा होता है, जब हम यहां से स्विच को ऊपर करते हैं, स्विच को ऑन किया तो ये देखो ये स्ट्रिप यहां कनेक्ट हो गई, तो करंट आने लगा इस कॉइल के थ्रू। तो यहां पे कांटेक्ट पॉइंट हमने बना दिया बाय टर्निंग ऑन द एमसीबी, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है दोनों टर्मिनल्स के बीच। ये मैग्नेटिक कॉइल है और यहां पे साथ साथ हमारे पास एक बाईमेटालिक स्ट्रिप भी है। मैग्नेटिक कॉइल ये दिख रही है आपको, ये दिख रही है बाईमेटालिक स्ट्रिप। अब क्या होता है, जब करंट बहुत हाई होता है तो बाईमेटालिक स्ट्रिप मुड़ करके इस कांटेक्ट को यहां से ब्रेक कर देती है। जैसे आपने इसको ऊपर किया है ना, ऊपर करके जुड़ा है जिससे कि कॉइल में करंट आ रहा है, जैसे ही करंट बहुत हाई हो जाएगा तो बाईमेटालिक स्ट्रिप इस कांटेक्ट को डिस्कनेक्ट कर देगी और उसमें उसकी मदद करती है ये मैग्नेटिक कॉइल। तो यहां एक तरह से आपका टोटल एक्शन होता है बाईमेटालिक स्ट्रिप प्लस मैग्नेटिक कॉइल का, जो कि इस स्विच को वापस से डाउन कर देता है। स्विच अगर डाउन आ गया तो वापस से आप इसको मैन्युअली रेज कर सकते हो।
तो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक कॉइल है ये डिसाइड करती है कि कितना करंट आपका एक्सेस करंट कहलाएगा। किस करंट को आप बोलोगे कि भाई ये तो जरूरत से ज्यादा करंट आ रहा है, तब हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस मैग्नेटिक कॉइल। अब दूसरा आता है बेटा मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर को हम कहते हैं MCCB। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ MCCB। MCCB और MCB का वर्किंग सेम होता है, बस फर्क ये होता है जो MCCB है ये काफी हाई रेटिंग की होती है, तो इट कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी ये काम आ जाती है। तो देखो MCCB क्या है, इट इज अनदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस विच इज यूज्ड व्हेन लोड करंट एक्सीड्स द लिमिट ऑफ MCB। MCB से ज्यादा करंट पे अगर आपको लगाना है देन यू विल यूज MCCB। ये ओवरलोड से भी प्रोटेक्ट करती है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से भी प्रोटेक्ट करती है और सर्किट्स की स्विचिंग में भी काम आती है। सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है, डोमेस्टिक में भी चल सकती है, इंडस्ट्रियल में भी। वहीं अगर MCB की बात करें तो दैट इज मेनली यूज्ड इन द डोमेस्टिक सर्किट्स। ठीक है, तो वाइड करंट रेटिंग और हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी कि बहुत हाई करंट को भी ब्रेक कर सकती है, ओपन कर सकती है। दैट इज व्हाई इट इज मेजरली प्रेफर्ड इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो अगर MCB और MCCB का डिफरेंस देखें, MCB जो है 125 एम्पियर के ऊपर नहीं चलाई जाती है, MCCB 1600 एम्पियर तक चलती है। ये 10 एम्पियर तक के करंट को ओपन सर्किट कर सकती है, ये 10 किलो एम्पियर तक के करंट को भी ओपन सर्किट कर सकती है। तो ये लो ब्रेकिंग कैपेसिटी में यूज होती है ज्यादातर डोमेस्टिक केसेस में। ये हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी मेनली इंडस्ट्रियल के अंदर यूज की जाती है। तो यहां पे इसकी ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक एडजस्टेबल नहीं है, यानी कितने करंट पे ट्रिप करेगी, कैसे जज करेगी कि करंट हाई है, ये सारी चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब मैन्युफैक्चरर बनाता है तो ये पहले से सेट होती है कि इतने करंट पे ट्रिप कर जाएगी। लेकिन यहां पे वी कैन मॉडिफाई, तो इट कैन बी द ट्रिप सर्किट कैन बी फिक्स्ड एज वेल एज एडजस्टेबल, यानी आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो। ये आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने करंट को आप ओवर करंट मानोगे या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मानोगे, तो यू कैन डिसाइड व्हेन इट एक्चुअली ट्रिप्स। अब तीसरा आता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, RCCB। RCCB क्या है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो ये जो है ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डिवाइस है जो कि सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देती है जब कभी लीकेज होता है करंट का। लीकेज का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास दो कंडक्टर हैं, एक फॉरवर्ड एक रिटर्न। अगर 100 एम्पियर गया तो आई एक्सपेक्ट कि 100 एम्पियर ही वापस आ रहा होगा। लेकिन बीच में से अगर करंट कहीं लीक कर गया या करंट ने एक और रास्ता ढूंढ लिया, क्लोज पाथ फॉलो करने का, रिटर्न कंडक्टर से पूरी तरह से वापस नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉरवर्ड और रिटर्न कंडक्टर का करंट कंपेयर करके ये जज कर लूंगा कि कहीं ना कहीं बीच में से करंट लीक हुआ है, करंट हैज टेकन अ डाइवर्जन, करंट हैज टेकन अ डिफरेंट पाथ। और उस केस में हम अगर सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दें, दैट सॉर्ट ऑफ अ स्विच इज कॉल्ड एज अ रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो इट इज द सेफेस्ट डिवाइस टू डिटेक्ट एंड ट्रिप अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल लीकेज करंट टू एंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक। अब ये इलेक्ट्रिकल शॉक कैसे लगेगा जानते हैं, चलिए। तो देखो यार, जैसे मान लो कि ये 10 एम्पियर करंट गया लाइव वायर में, अब रिटर्न में भी आना चाहिए था 10 एम्पियर, लेकिन यहां मैंने किसी इक्विपमेंट को टच कर लिया तो कुछ करंट मेरी बॉडी से फ्लो कर गया। अगर कुछ भी करंट मेरी बॉडी से फ्लो कर रहा है, रिटर्न पाथ मेरी बॉडी से उसको मिल रहा है, तो रिटर्न कंडक्टर का करंट कम होगा। तो ये जो करंट ट्रांसफॉर्मर है ये चेक कर लेता है क्या दोनों करंट इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। अगर अनइक्वल होते हैं तो ये सॉलिड स्टेट सर्किटरी माने ये स्विच बना है सेमीकंडक्टर की मदद से, इसको इन्फॉर्म करेगा, इसको बताएगा कि भाई फॉरवर्ड और रिटर्न करंट बराबर नहीं है, और तब ये डिस्कनेक्ट कर देगा सर्किट को। तो ज्यादातर क्या होता है, जब हमारी बॉडी से एक पाथ मिल जाता है करंट को, तो फॉरवर्ड और रिटर्न कंडक्टर का करंट अलग अलग हो जाता है। तो हमें झटका लगने से बचाने के लिए यूज होता है RCCB, क्योंकि ये सीधा मेन वायर को डिस्कनेक्ट कर देगा। जैसे ही मेन वायर को डिस्कनेक्ट करेगा तो लाइव वायर में करंट आना बंद हो जाएगा, तो मुझे झटका भी नहीं लगने वाला है। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना, अर्थिंग इसलिए करते हैं ताकि झटके से बच पाएं, ऐसी RCCB भी इलेक्ट्रिकल शॉक से ही आपको बचाता है बाय डिटेक्टिंग एनी लीकेज करंट इन द सर्किट।
तो आई होप कि अब आपको समझ आया हो। आपके घर में जो एमसीबीज लगती हैं या एमसीसीबी कभी टर्म सुनने में आता है या आरसीसीबी, अब आपको उसका एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। और कहीं पे अगर आप बात करोगे किसी से इस बारे में तो यू विल बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम एंड यू विल बी एबल टू एनलाइटन एवरीबडी अराउंड यू। लेकिन बेटा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, और कमेंट जरूर कर देना कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं। यार आज का टॉपिक है अपना कोरोना। तो बात यह है कोरोना, कौन से कोरोना की हम बात कर रहे हैं बताओ? दो कोरोना हो सकते हैं। एक तो ये है भैया कोविड-19 जो इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, 2019 में आया था ना, तो 19। और एक है ये कोरोना। अब बताओ कौन से कोरोना की बात की जा रही है? आज हम कौन सा कोरोना डिस्कस करने वाले हैं? कोरोना वायरस डिस्कस करने वाले हैं अमन? नहीं मेरे भाई, कोरोना वायरस तो नहीं डिस्कस करने वाले हैं। और कोई बताओ भाई, और कोई बताओ? ये वाला, दिस फिनोमिना वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये जो पर्पल ग्लो दिख रहा है ना, दिस इज द कोरोना इन पावर सिस्टम। अब आप कहोगे सर ये कोरोना क्या चीज है? तो बेटा बहुत ध्यान से समझना, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, एकदम ध्यान से समझ लो, एक ही बार में सारी चीजें सफाचट एकदम क्लियर। क्या होता है जब एक ट्रांसमिशन लाइन में मेरे भाई बहुत हाई वोल्टेज होती है, तो ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज से बनती है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों जी सर? क्योंकि बेटा वोल्टेज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो हाई वोल्टेज से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनना एकदम नॉर्मल सी बात, मतलब ऐसा तो होगा ही होगा। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेटा एयर को कर देती है आयनाइज, यानी एयर में आ जाता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एयर एक इंसुलेटर है ना, एयर एक डाइलेक्ट्रिक है। तो जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बनेगी तो ये एयर में इलेक्ट्रॉन्स और एटम को अलग कर देगी, या ये कह दो इलेक्ट्रॉन एटम से छीन के निकाल देगी। अगर इलेक्ट्रॉन एटम से छीन के इसने बाहर निकाल दिया तो अब एयर बन गई कंडक्टिंग, अब एयर बन गई कंडक्टिंग। तो बेटा इस फिनोमिना को कहते हैं कोरोना। अब ये कोरोना देखने कैसे मिलता है? बेटा कोरोना देखने के लिए ना दो चीजें दिखती हैं, एक तो साउंड और एक लाइट। अब आप कहोगे सर ये साउंड और लाइट क्या चीज है? बेटा एक चीज आपने देखी हो कभी, बरसात के मौसम में बहुत एक हाई वोल्टेज लाइन के जब नीचे से गुजरते हो, आपने देखा झिनझिन झिनझिन की आवाज आती रहती है, तो बेटा दैट इज कोरोना, दैट सॉर्ट ऑफ अ साउंड जिसे हम कहते हैं बेटा हिसिंग साउंड, जिसे हम कहते हैं हिसिंग साउंड, तो दैट इज कोरोना। ठीक है, और जैसा आप देख रहे हो यहां पे वॉयलेट ग्लो है, वॉयलेट ग्लो, तो दिस इज लाइट। तो बेटा जब कंडक्टर के चारों तरफ लाइट और साउंड पैदा होने लगे, जब कंडक्टर के चारों तरफ लाइट और साउंड बेटा पैदा होने लगे, दैट इज कॉल्ड एज कोरोना। अब बात है ये बेटा खतरनाक क्यों है? खतरनाक क्यों है? देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब हम बात करते हैं लॉसेस की, तो व्हाट आर द लॉसेस? बेटा लॉसेस वो होते हैं जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल से अनयूटिलाइजेबल फॉर्म में चली जाए। सर ये अनयूटिलाइजेबल क्या है? ये तो नया सा वर्ड लग रहा है सुनने में। बेटा ऐसी एनर्जी जिसका यूज आप ना कर पाओ, जिसका यूज आप ना कर पाओ। जैसे अब एक चीज सोचो, जब करंट वायर में दौड़ता है, जब करंट वायर में दौड़ता है तो वायर गर्म होती है। अब उससे कपड़े तो प्रेस कर नहीं सकते, उस वायर के गर्म होने से पानी तो गर्म कर नहीं सकते सर्दियों में, वो एनर्जी वेस्ट हो गई। लेकिन जब वही रॉड गीजर के अंदर गर्म होती है, जब वही रॉड गीजर के अंदर गर्म होती है बेटा, वो पानी गर्म कर देती है, वो पानी गर्म कर देती है। यानी हमेशा हीट एनर्जी लॉस नहीं होता, हमेशा बेटा हर गर्म होने वाली चीज नुकसानदायक नहीं होती। कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन का गर्म होना जरूरी है, पानी गर्म करने के लिए गीजर की रॉड का गर्म होना जरूरी है। सो दैट इज यूजफुल एनर्जी। लेकिन यही हीट अगर आपने यूज नहीं की, दैट इज वेस्ट ऑफ एनर्जी, यूजलेस एनर्जी, एंड दैट इज कॉल्ड एज लॉस। अब यार ऐसा तो है नहीं कंडक्टर में लाइट जल रही है तो नीचे बैठ के तुम अपनी गेट की तैयारी कर लोगे, ऐसा तो नहीं ना कर पाओगे, तो ये एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। अब इसके नीचे बैठ के अगर कोई पढ़ ले तो मैं कहूंगा ये लॉस नहीं, चलो किसी काम तो आई, किसी काम तो आई।
बिजली वाले फिर भी बोलेंगे लॉस है, क्योंकि उन्हें इसका पैसा नहीं मिला। जब बेटा इस चीज का पैसा नहीं मिला तो उनके लिए तो वेस्ट हो गई ना एनर्जी, उनके लिए तो वेस्ट हो गई। आप तो ये कहोगे सर जो हम बिजली की चोरी करते हैं टांका डाल के, वो भी लॉस थोड़ी है, यूज तो हो रही है। अरे भैया हम तो यूज कर रहे हैं, लेकिन नहीं बेटा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जिसने वो पावर जनरेट की थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसका पैसा मिला नहीं, तो एनर्जी वेस्ट हो गई। तो दीज आर कॉल्ड एज लॉसेज। whatever energy we are not able to utilize that is called as losses। तो यहां पे भी ये जो हीट और लाइट और साउंड बन रही है, ये बन तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कोरोना लॉस। और आज मैं आपको कोरोना लॉस का फॉर्मूला भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोरोना क्या फिनोमिना है। अब अंकित कह रहे हैं भैया वॉयलेट कलर क्यों आ रहा है, वॉयलेट कलर ही क्यों आ रहा है? बेटा सबसे पहली बात तो क्योंकि सर का फेवरेट कलर है इसलिए आ रहा है। दूसरा रीजन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा जब कभी किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे चले जाते हैं, पढ़ा है। अब जब बेटा वो नीचे आते हैं, वापस लोअर ऑर्बिट में आते हैं, तो एनर्जी एमिट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। वही लाइट है ये, वही लाइट है बेटा ये। तो डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कि वो एनर्जी में कितना गैप है, वो डिफाइन करती है कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी। याद आ रहा है कुछ E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू करके, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू करके हम एनर्जी निकालते थे। तो वहां से बेटा आती है ये वॉयलेट वाली लाइट। तो डिपेंड करता है ना एटम के अंदर कितना एनर्जी का गैप है, उस अनुसार आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है। तो वॉयलेट रीजन में आ गई, वॉयलेट रीजन में आ गई। अब भी अगर नहीं समझ आया तो एक बार क्या करना, हमारे अनअकैडमी जेई चैनल पे जाना, वहां से केमिस्ट्री का लेक्चर देखना, एटॉमिक मॉडल वाला, बिल्कुल चमक जाएगा एकदम, ठीक है। इतना चमक जाएगा बेटा, घूमते फिरते चीजों में एटम नजर आने लगेंगे, ऐसी हालत हो जाएगी, मतलब बिल्कुल साइंटिस्ट लेवल, गॉड लेवल पहुंच जाओगे तुम। Hello everybody and welcome to Engineering Pathshala, my dear friends. We are live again with another video of waves in a transmission line। तो बच्चों आज क्या डिस्कस करेंगे, आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। काफी समय से डिमांड आ रहा था कि सर पावर सिस्टम के लिए कुछ करो ना, सर पावर सिस्टम के ऊपर एनिमेटेड वीडियो क्यों नहीं आता। तो बच्चों आ गया है आपकी डिमांड पर, और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो पहले से, जिसके बारे में आपने कंसेप्चुअली काफी चीजें पढ़ी हैं कि सर्जेस कैसे एक ट्रांसमिशन लाइन में प्रोपोगेट करते हैं, वेव्स कैसे प्रोपोगेट करती हैं, क्योंकि सर्ज भी तो बेटा एक तरह की वेव ही है ना। तो आज मैं आपको पूरा विजुअलाइज कराने वाला हूं कि एक लॉसलेस लाइन के अंदर कैसे आपका वेव या एक सर्ज प्रोपोगेट करता है। बट इससे पहले मेरे उन दोस्तों के लिए जो मुझे पहली बार यहां पे देख रहे हैं, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है अंकित गोयल। मेरा गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 बार AIR 1 रहा है, 2014 और 18 में। इससे पहले भी 2013 में मेरा 8th रैंक रहा है गेट के अंदर। एंड एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर एट अनअकैडमी फॉर गेट डिपार्टमेंट। बट इसके अलावा भी मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ IIT इंदौर से इन द ईयर 2013, ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर आप मेरी टीचिंग्स को पसंद करते हो तो मैं अनअकैडमी पे भी स्पेशल क्लासेस भी लेता हूं और पेड क्लासेस भी लेता हूं। तो अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो यू कैन यूज द कोड अंकित ESE, और ये आपको बच्चों इमीडिएट 10% डिस्काउंट दिलवाएगा, साथ साथ मेरी गाइडेंस में तैयारी करने का एक मौका आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। और इवन इफ यू डोंट ज्वाइन तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि वहां पे मेरी फ्री क्लासेस का आप फायदा उठा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी फ्री क्लासेस लगती है ऑन अ डेली बेसिस। चलिए अब शुरू करते हैं कि किस तरह से एक सर्ज या वेव प्रोपोगेट करती है। तो बच्चों देखो, जैसे हमने यहां पे दिखाया है कि एक बैटरी मैंने लगा दी है, और ये दोनों मेरी ना ट्रांसमिशन लाइन है, एक फॉरवर्ड और एक बेटा एक रिटर्न। अब लॉसलेस लाइन के अंदर क्या होगा, एक तो होगा शंट कैपेसिटर। देखो ये सारे शंट कैपेसिटर्स आ गए, और क्या होगा जल्दी से बता दो चैट और कमेंट में। यस यस यस, सीरीज इंडक्टर। तो बच्चों देखते हैं, सीरीज इंडक्टर आ गए। देखो इसमें आयरन कोर दिखाया है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन एल्यूमिनियम से बनती है तो मेटालिक कोर होगा। अब बच्चों जब मैं यहां पे ये स्विच क्लोज करता हूं ना, ये स्विच क्लोज करने से क्या होगा, बैटरी कनेक्ट होगी सर, तो वोल्टेज एकदम से बढ़ जाती है। इंडक्टर चार्ज होता है इंडक्टर के करंट से कैपेसिटर,
कैपेसिटर की वोल्टेज से अगला इंडक्टर, उसके करंट से अगला कैपेसिटर, फिर इंडक्टर कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर। तो हर बार क्या होगा, बैटरी ने पहले इंडक्टर को चार्ज किया, उसने कैपेसिटर को, फिर कैपेसिटर ने अगले इंडक्टर को, फिर उसने कैपेसिटर को। तो इंडक्टर का करंट बेटा कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ाता है और कैपेसिटर की वोल्टेज इंडक्टर के करंट को। अब बच्चों एक बात पे ध्यान दो, मैंने रिसीविंग एंड रखा है ओपन। अब मुझे मेरा कौन सा स्टूडेंट ये बताएगा सर्जेस में जब रिसीविंग एंड ओपन होता है तो ट्रांसमिटेड वोल्टेज क्या होती है? मुझे कौन बच्चा ये बात बताने वाला है सर्जेस में सर जब रिसीविंग एंड ओपन होता है तो ट्रांसमिटेड वोल्टेज क्या होती है? जल्दी से सोचो और वापस से हम देखते हैं एक बार क्विकली। सबसे पहले मैंने आपको बताया शंट कैपेसिटर्स लगे होते हैं, इतने अपने सवाल का जवाब सोच के रखना। ये शंट कैपेसिटर लगे होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, और लॉसलेस लाइन में बीच में आते हैं आपके सीरीज इंडक्टर। उसमें हम मेटालिक कोर दिखाते हैं क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये हमने दिखा दिया मेटालिक कोर। अब बच्चों जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे, जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे, प्रोपोगेशन देखना कैसे होगा। ये बैटरी सबसे पहले इस इंडक्टर को चार्ज करेगी और ये चार्ज करेगा इस कैपेसिटर को। अब ये चार्ज करेगा दूसरे इंडक्टर को, वो चार्ज करेगा बेटा दूसरे कैपेसिटर को, तीसरा इंडक्टर, तीसरा कैपेसिटर, चौथा इंडक्टर, ऐसे सीरीज से ये चार्ज होते जाएंगे। इंडक्टर कैपेसिटर को चार्ज करेगा, कैपेसिटर इंडक्टर को। और अब तक आप में से बहुत लोगों ने आंसर सोच लिया होगा सर ओपन सर्किटेड में ट्रांसमिटेड वोल्टेज होती है 2V, तो बेटा V चली, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण देखो ये बहुत ऊंची वोल्टेज बन गई क्योंकि ये हो गई 2V। अब यहां से रिफ्लेक्टेड वोल्टेज चलेगी, समझ रहे हो, यहां से रिफ्लेक्टेड वेव चली, जहां जहां रिफ्लेक्टेड वेव पहुंचेगी वहां वहां आपकी वोल्टेज होती चलेगी 2V। पहले V थी तो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज की वजह से होती चली 2V, लेकिन इधर की फिक्स रहेगी V। सर आगे क्या होगा? अब देखो इधर की तो फिक्स है ना V, अब जो इंसिडेंट वेव होगी वो -V की होगी ताकि वापस से वोल्टेज कितनी होने लगे V। देखो वापस से वोल्टेज V होने लग गई ना, वापस से बेटा आपकी वोल्टेज V होने लग गई, लेकिन करंट बढ़ने लग गया। वोल्टेज गिर रही है लेकिन करंट बढ़ रहा है। अब यहां पे वापस से वोल्टेज क्या हो जाएगी V, वापस से वोल्टेज क्या हो जाएगी V। अब यहां से जो रिफ्लेक्टेड होगी वो वोल्टेज को करेगी 0। तो देखो जैसे जैसे रिफ्लेक्टेड वेव आगे पहुंचेगी वोल्टेज बेटा 0 होती चलेगी, वोल्टेज हमारी 0 होती चलेगी। समझ में आई मेरी बात? सबसे पहले क्या हुआ, V आई, इधर से भी V गई तो 2V हो गई, फिर इधर से -V आई, वापस से V हो गई, इधर से -V गई तो वापस से क्या आ गई 0, तो वोल्टेज आ गई 0। अब उधर से वापस से V आना स्टार्ट होगी, वापस से V आना स्टार्ट होगी तो वोल्टेज बनने लगेगी V। और अगर आपको ना इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझना है तो क्रिएट्रिक्स चैनल पे जरूर देखना मेरा सर्जेस का लेक्चर, ये मैंने आपको ग्राफिकली ड्रॉ करके समझाया। अब वापस से देखो यहां से रिफ्लेक्शन होगा, फिर से 2V बनेगी, तो वापस से वोल्टेज बनने लग गई हमारी 2V। समझ गए? वापस से वोल्टेज क्या बनने लग गई बेटा 2V। तो समझो पहले V आती है, इधर से भी V जाती है 2V हो जाती है, -V आती है वापस से V हो जाती है, इधर से -V जाती है 0 हो जाती है, फिर V आती है V हो जाती है, इधर से V जाती है वापस से 2V हो जाती है। तो कैसे चल रहा है फिनोमिना, V 2V V 0, फिर V 2V V 0, इस तरह से चल रहा है। अब अगला केस लेते हैं मेरे भाई, अगर हम लोग कुछ ऐसा करें, देखो यहां पे दोबारा से देखना, ये V आ रही है, V आ रही है, V आ रही है, तो ये 2V होती चली जा रही है, ठीक है, ये 2V होती चली जा रही है रिफ्लेक्टेड के कारण। तो इस टाइप से यानी कि V गई और रिफ्लेक्टेड की वजह से 2V हो गई। अब देखो यार, अगर रिसीविंग एंड पे कैपेसिटर हटा के शॉर्ट सर्किट कर दें, यानी ओपन सर्किट की जगह शॉर्ट सर्किट, तो अपना जवाब रेडी रखना। इस बार क्या होगा, देखो वापस से स्विच क्लोज करेंगे, वापस से हम स्विच क्लोज करेंगे और वेव आएगी V की, लेकिन शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से रिफ्लेक्टेड वोल्टेज क्या होगी ये आपको बताना है। देखो ये V की वेव आने लगी, जहां जहां वेव पहुंच रही है बेटा वहां वहां पे वोल्टेज V होने लग जा रही है। अब यहां पे लेकिन शॉर्टिंग है, क्या होगा, शॉर्टिंग में सर टोटल वोल्टेज हो जाती है 0, तो बेटा टोटल वोल्टेज 0 हो जाती है। तो इस बार देखना 2V नहीं होगी, देखा 0 चली गई, इस बार 2V नहीं गई, इस बार 0 चली गई, इस बार ये वेव 0 जाने लगी। तो ये वापस से सारे इंडक्टर्स का वोल्टेज धीरे धीरे देखो गिरते गिरते 0 आ रहा है, लेकिन करंट का एरो देखो, करंट बढ़ता जाता है। याद करो शॉर्ट सर्किटेड लाइन में करंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अगली वेव आई है, वापस से V होने लगा भाई, वापस से V होने लगा, लेकिन बेटा करंट लगातार बढ़ेगा, करंट कभी कम नहीं होगा शॉर्ट सर्किटेड लाइन में। अगर आपने मेरा सर्जेस का वीडियो देखा होगा तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे
कि भैया ओपन सर्किटेड लाइन में 4t के बाद वापस लाइन 0 0 पे आ जाती है, लेकिन शॉर्ट सर्किटेड लाइन में करंट निरंतर बढ़ता रहता है, वोल्टेज भले ही वापस 0 आ जाए। अब लास्ट केस देखते हैं यार, अगर यहां रेजिस्टेंस लगा दें तो ना तो ये ओपन है ना तो ये शॉर्ट है, देयर इज सर्टेन लोड। तो ओपन में कितना वोल्टेज बना था 2V और शॉर्ट में कितना बना था 0। तो बेटा यहां ना तो 2V बनेगा ना तो 0 बनेगा, इट विल लाई समवेयर बिटवीन 0 एंड 2V। देखो वोल्टेज आती जा रही है V, लेकिन अब यहां पे जो वोल्टेज आएगी वो ना 0 होगी ना वो 2V होगी, इट विल बी समवेयर बिटवीन दैट। तो ये देख रहे हो, ये 2V तक भी नहीं गया और ये 0 तक भी नहीं गया, ये बीच में कहीं इस तरीके से फ्लक्चुएट करता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, बट ना 0 जाएगा ना ही 2V जाएगा व्हेन यू कनेक्ट अ फाइनाइट रेजिस्टेंस। तो आपको अगर याद हो बेटा, सर्जेस के अंदर क्या करते हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट वाले केसेस लेके थेवेनिन निकालते हैं और उस थेवेनिन में फिर ये लोड के तौर पे रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। तो आपको ये एनिमेशन हेल्प आउट करेगा, लेकिन अगर आप सर्जेस वाला कॉन्सेप्ट पहले पढ़ के रखते हो और मेरी बातों को समझते हो कि भाई कैसे ओपन सर्किटेड लाइन में टोटल वोल्टेज 2V आती है, शॉर्ट सर्किटेड लाइन में टोटल वोल्टेज 0 आती है, अगर आप ये बात याद रखते हो तो देन यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेल कि V वाला सर्ज पहले आता है, फिर यहां से रिफ्लेक्टेड वेव बनती है, ओपन सर्किटेड लाइन में रिफ्लेक्टेड वेव V बनती है तो टोटल 2V हो जाता है, शॉर्ट सर्किटेड में -V बनती है तो टोटल हो जाता है 0। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। तो एक बार और इस वीडियो को देखना अगर नहीं समझ आया, बट उससे पहले सर्जेस का लेक्चर कंप्लीट कर लेना जो मैंने क्रिएट्रिक्स चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अब देखो यार, अगर मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप बेटा डाउनलोड करना है। उसके अंदर आपको फिर क्या करना है, ब्राउजर में ये लिंक डालना है। ये लिंक एक बार ब्राउजर में डालोगे आपके पास एक पूरा पेज खुल जाएगा मेरी स्पेशल क्लासेस का। जिस लिंक को आप देखना चाहोगे, जिस लेक्चर को देखना चाहोगे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अरेंज्ड है, क्लिक करना, ऐप के अंदर ओपन होगा, यू कैन एंजॉय द लेक्चर। सिंपल है, ऐप डाउनलोड करनी है, अकाउंट बनाना है, फिर इस URL पे जाके जो लेक्चर देखना है वो देख। Good evening everyone and welcome to this session on how a DC motor works। तो देखो यार, ये सेशन मैं हिंदी में लेने वाला हूं, सबसे पहले ही बता दे रहा हूं, और बहुत क्विक सेशन होने वाला है, बहुत ही क्विक सेशन होने वाला है। और इस सेशन में मैं क्या करने वाला हूं, आपको ये बताने वाला हूं मेरे दोस्त कि डीसी मोटर कैसे काम करती है, डीसी मोटर कैसे काम करती है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये मैं आपको विजुअलाइज कराने वाला हूं। और इसके बाद आपकी डीसी मोटर की जो अंडरस्टैंडिंग होने वाली है वो लाइक नेवर बिफोर होने वाली है। इससे पहले ऐसी अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं बनी होगी अबाउट डीसी मोटर। तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं मेरे दोस्त, मेरा नाम है अंकित गोयल और मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। मेरी गेट में 2 बार फर्स्ट रैंक रह चुकी है इन द ईयर 2014 और 2018, और मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल दिया गया था जब मैं अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। और अभी तक 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूं, जिससे कि मुझे ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि आप लोगों को किस चीज की नीड है और किस तरह से आप लोगों का गेन हो सकता है लर्निंग में। ठीक है, किस तरह से गेन हो सकता है लर्निंग में। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो इस सेशन के अंदर हम ये समझेंगे डीसी मोटर की वर्किंग कैसे होती है, डीसी मोटर की वर्किंग कैसे होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के लिए ग्राफिक्स का यूज करने वाला हूं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है मेरे दोस्त, तो बहुत ज्यादा क्रिस्प होने वाला है, बहुत ज्यादा क्रिस्प होने वाला है। ठीक है, चलो। तो हमारी डीसी मोटर कुछ इस तरह से दिखती है अगर अंदर से देखी जाए। अगर मैं अंदर से देखूं मेरे भाई, तो डीसी मोटर कुछ इस टाइप से दिखती है। ये जो एरिया है दैट इज योर फील्ड वाइंडिंग, दैट इज योर फील्ड वाइंडिंग। ये जो रोटेटिंग वाला पार्ट है दैट इज योर आर्मेचर वाइंडिंग, और ये जो वापस से नीचे वाला पार्ट है दैट इज अगेन योर फील्ड वाइंडिंग, दैट इज अगेन योर फील्ड वाइंडिंग। ये जो पार्ट है जो कॉपर का है दैट इज कम्यूटेटर, दिस इज योर शाफ्ट एंड दिस इज योर ब्रश, कम्यूटेटर, शाफ्ट एंड ब्रश। अब 1 बाय 1 बात करते हैं कि ये डीसी मोटर की वर्किंग क्या होती है और आपको विजुअलाइज कराते हैं, आपको विजुअलाइज कराते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे भाई मैं एक कॉइल लेके चल रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द कॉइल, और ये जो टर्मिनल्स बाहर आ रहे हैं ब्रशेस के थ्रू, दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। क्योंकि ये मोटर है
तो ये ब्रशेस हमारे बैटरी से कनेक्टेड है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जिससे कि करंट एंटर करेगा, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है जिससे कि करंट लीव करेगा। ठीक है, पॉजिटिव से करंट एंटर करेगा और नेगेटिव टर्मिनल से मेरे भाई लीव करेगा। अब ये देखो, ये कम्यूटेटर है हमारा, ये कम्यूटेटर है, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट है। कॉइल का एक एंड कम्यूटेटर के एक सेगमेंट से जुड़ा है, कॉइल का दूसरा एंड दूसरे सेगमेंट से जुड़ा है। तो जो भी सेगमेंट इस वाले ब्रश पे लाई करेगा उस सेगमेंट में करंट एंटर करेगा और जो सेगमेंट इस वाले ब्रश से जुड़ेगा उससे करंट लीव करेगा। अब ध्यान दो, देखो क्या होता है, यहां से करंट लीव कर रहा है, इस वाले सेगमेंट से लीव कर रहा है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क। तो इस वाले पोल के अंदर, साउथ के अंदर जो भी कोई कंडक्टर लाई करेगा उस पे फोर्स आएगा अपवर्ड, ये देखो इस वाले ब्रश से करंट लीव कर रहा है, ये एरो देखो कॉइल पे, इधर पे जो कॉइल आ रही है उस पे एरो है आउटवर्ड, इधर पे जो कॉइल आ रही है उस पे एरो है आउटवर्ड। तो आउटवर्ड एरो होने की वजह से IL क्रॉस B की मदद से अगर निकालोगे तो आपका टॉर्क आएगा अपवर्ड। सिमिलरली इस पोल के नीचे जो कंडक्टर आएगा उस पे टॉर्क आएगा डाउनवर्ड। तो ये कॉइल लगातार घूमती रहेगी, अब जब ये कॉइल परपेंडिकुलर आ जाएगी पोल्स के, जब ये कंडक्टर परपेंडिकुलर आ जाएंगे पोल्स के, तो इस पे टॉर्क बनेगा जीरो। क्यों जीरो बनेगा? क्योंकि उस समय पे कॉइल में कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, कॉइल का EMF या करंट जीरो हो तो उसका टॉर्क भी जीरो। ठीक है, ये देखो इस पोजीशन में कोई करंट नहीं आएगा, तो टॉर्क क्या बनेगा, जीरो, टॉर्क विल बी जीरो। इज दैट क्लियर? लेकिन एक कॉइल से कभी भी स्मूथ रोटेशन नहीं मिलता। ध्यान दो, ये मोटर झटके से घूम रही है, क्यों? ऊपर जाके टॉर्क हो गया जीरो, तो अचानक से जर्क आ रहा है, तो मोशन या टॉर्क विल नॉट बी स्मूथ। टॉर्क कभी आपको स्मूथ नहीं मिलने वाला, इसके लिए कॉइल बढ़ानी पड़ेगी। अब देखो, ये दो कॉइल बढ़ा ली, अब कम्यूटेटर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, इधर से करंट आउटवर्ड तो टॉर्क अपवर्ड, इधर से करंट इनवर्ड तो टॉर्क डाउनवर्ड। जो कॉइल परपेंडिकुलर उसका करंट जीरो, और जो कॉइल अंडर द पोल बस उसमें आएगा टॉर्क। जो कॉइल परपेंडिकुलर मेरे भाई उसका करंट जीरो, और जो पोल के नीचे उस पे लगेगा टॉर्क, उस पे क्या लगेगा, टॉर्क। तो ये देखो, अब जो रोटेशन आएगा वो पहले से आएगा स्मूथ। ये कॉइल करंट कैरी करेगी, जो बार बार हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ये कॉइल करंट कैरी करेगी और वर्टिकल वाली कॉइल का करंट हो जाएगा जीरो। तो वर्टिकल कॉइल डज नॉट हैव एनी टॉर्क, द हॉरिजॉन्टल कॉइल विल हैव अ टॉर्क। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉइल विल हैव अ टॉर्क। तो अगर कोई आपसे पूछे ज्यादा कॉइल क्यों यूज करते हैं, तो आप बोलोगे मोटर का रोटेशन स्मूथ करने के लिए कॉइल ज्यादा नंबर में यूज की जाती हैं। अब देखो, हमने कॉइल्स बहुत ज्यादा बढ़ा दी और बहुत ज्यादा कम्यूटेटर सेगमेंट यूज कर लिए, कॉइल बहुत ज्यादा बढ़ा दी और बहुत ज्यादा कम्यूटेटर सेगमेंट यूज कर लिए, तो रोटेशन कैसा आ गया, कंटिन्यूअस। रोटेशन कैसा आ गया मेरे भाई, कंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर? अब देखो, ये कॉइल्स के अंदर हमने क्या डाल दिया, आर्मेचर का कोर। कॉइल के अंदर क्या डाल दिया, आर्मेचर का कोर, यानी कॉइल खुली नहीं रहती है। कॉइल के अंदर क्या लगा होता है, कोर, जिसके अराउंड आपकी वाइंडिंग बांधी जाती है। इस पे ध्यान दो, देखो ये वाइंडिंग जो है आर्मेचर के स्लॉट्स में है, ये कहलाते हैं आर्मेचर के टीथ, एंड दीज आर द स्लॉट्स। सो वाइंडिंग इज लाइंग इनसाइड द स्लॉट ऑफ द आर्मेचर। वाइंडिंग स्लॉट के अंदर आर्मेचर के स्लॉट के अंदर लाई कर रही है। अब ये वाइंडिंग घूमेगी, ये आ गया आपका कम्यूटेटर, और ये बीच में क्या आ गया, शाफ्ट। अब ये जो ब्रशेस है मेरे भाई, जब बार बार ये रगड़ेंगे, जब बार बार ये कम्यूटेटर से रब होंगे, तो ये ब्रश धीरे धीरे घिसता चला जाता है, ये ब्रश लगातार घिसता जाता है। और गजब की बात ये देखो,
पीछे क्या लगा है, ध्यान देना, जब ये ब्रश घिसेगा पीछे क्या दिख रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है पीछे, पीछे दिख रहा है एक स्प्रिंग, ये दिखा स्प्रिंग। स्प्रिंग क्यों है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो वो क्या लगाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो क्या लगाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ब्रश डिटैच ना हो जाए, ब्रश अलग ना हट जाए कम्यूटेटर से, तो पीछे से फोर्स लगाना पड़ता है। दैट फोर्स इज अप्लाइड बाय द स्प्रिंग, दैट फोर्स इज अप्लाइड बाय द स्प्रिंग। तो आप क्या बोलोगे, स्प्रिंग क्यों यूज करते हैं, टू काउंटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड बाय द कम्यूटेटर। विजुअलाइज कर पा रहे हैं यानी सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करें, विजुअलाइज हो रहा है ना बढ़िया तरीके से। ये आर्मेचर का कोर है, मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, इसमें वाइंडिंग लगी है, वाइंडिंग पे लगेगा टॉर्क, टॉर्क से घूमेगी वाइंडिंग, वाइंडिंग के साथ जुड़ा कम्यूटेटर, कम्यूटेटर भी घूमेगा, और साथ में क्या लगे हैं, ब्रशेस, ब्रशेस के थ्रू क्या लगेगी, सप्लाई। तो मेरे भाई सबसे बड़ा जो खेल है डीसी मोटर में वो है स्प्लिट रिंग का या कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर की वजह से ही बस ऐसा होता है कि टॉर्क हमेशा बनता है यूनिडायरेक्शनल, टॉर्क हमेशा क्या बनता है, यूनिडायरेक्शनल। अब ये जो काले वाला पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज नथिंग बट योर इंसुलेटर, ये जो है ये आपका इंसुलेटर है। इंसुलेटर किस लिए है, ताकि कम्यूटेटर में आने वाला करंट शाफ्ट में ना फ्लो करे। शाफ्ट इज अ नॉन कंडक्टिंग पार्ट, उसका काम करंट कैरी करने का नहीं है। करंट कैरी करने का काम किसका है, वाइंडिंग का और कम्यूटेटर का और ब्रशेस का, और ब्रशेस का, तो शाफ्ट में करंट ना जाने पाए। अब देखो शंट मोटर को समझो, देखो ये ब्रशेस हैं, ये हमारे ब्रशेस हैं, ब्रशेस से जो टर्मिनल निकल रहा है एक घुस गया फील्ड वाइंडिंग में, ब्रशेस का दूसरा टर्मिनल किस में घुस गया, फील्ड वाइंडिंग में, यानी फील्ड वाइंडिंग आ गई पैरेलल में, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग भी उन्हीं दो टर्मिनल से कनेक्टेड है जिससे आर्मेचर कनेक्टेड है। आर्मेचर हमेशा ब्रशेस से कनेक्टेड होता है, हमने फील्ड वाइंडिंग को भी किससे कनेक्ट कर दिया, ब्रशेस से, तो फील्ड वाइंडिंग कम्स इन पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग, और ये हो गई शंट मोटर, ये हो गई शंट मोटर। अब शंट मोटर की स्पीड टॉर्क बढ़ने के साथ लगातार गिरती है, लगातार गिरती है। लेकिन मेरे भाई सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे बढ़िया बात कि शंट मोटर की स्पीड बहुत कम मात्रा में गिरती है विद इंक्रीज इन द लोड एज कंपेयर टू एनी अदर मोटर, और इसी वजह से इसका स्पीड रेगुलेशन बहुत ही बढ़िया आता है। दो मोटर का सबसे बढ़िया शंट और इंडक्शन, शंट और इंडक्शन। अब बच्चे पूछ रहे हैं भाई माइका कहां होता है, ये गैप दिख रहा है कम्यूटेटर में, यहां पे देखो ये गैप दिख रहा है, इस गैप में होता है माइका, तो ये पूरा माइका है, ये पूरा माइका है, ये देखो अंदर से भी गैप दिख रहा है, तो दैट इज ऑल मेड ऑफ माइका, दैट इज ऑल मेड ऑफ माइका। ये बात क्लियर हो रही है सभी लोगों को कि किस तरह से मोटर के अलग अलग पार्ट एक साथ काम करते हैं। तो अगर मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझो तो स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर बेसिकली क्या कर रहा है, वो हर बार जो कंडक्टर नॉर्थ के नीचे उसमें एक ही करंट भेज रहा है, जो साउथ के नीचे उसमें दूसरा करंट भेज रहा है, तो जो टॉर्क हर बार बन रहा है दैट टॉर्क इज यूनिडायरेक्शनल। अगर कॉइल का करंट रिवर्स होता रहेगा, अगर कॉइल का करंट रिवर्स होता रहेगा तो उसका टॉर्क कभी यूनिडायरेक्शनल नहीं बन सकता। आपको हमेशा करंट सेम डायरेक्शन में भेजना होगा, देन ओनली द मोटर कैन रोटेट इन वन डायरेक्शन, देन इट कैन रोटेट इन वन डायरेक्शन। और कोई डाउट मेरे भाई किसी को, किसी भी मेरे भाई बंधु को अगर कोई डाउट है जल्दी से मुझे बताए। दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉइंटी, वेरी वेरी शॉर्ट, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई ना। इसमें दो तीन चीजें मैंने समझाई है, मोटर की कंस्ट्रक्शन वाइज, मोटर की वर्किंग और मोटर का बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब जब पोल रिवर्स हो, यानी एक कंडक्टर नॉर्थ से साउथ के नीचे आए तो उसका करंट भी पलट जाए ताकि टॉर्क रहे सेम, टॉर्क रहे सेम। क्योंकि मेरे भाई फोर्स क्या होता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। पोल बदलने से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो करंट भी चेंज हो साथ में, ताकि टॉर्क रहे सेम, टॉर्क रहे सेम, ठीक है। कुलदीप, आर्मेचर के जो टीथ हैं, आर्मेचर के जो टीथ हैं इनके अंदर मोशनल ईएमएफ बन सकता है और इसीलिए इसको लैमिनेट भी किया जाता है।
क्योंकि इनमें बन जाएगा आपका मोशनल ईएमएफ, जिससे बनेंगे एडी करंट। ठीक है। रामकृष्ण, स्प्रिंग इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी ब्रश सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारे कम्यूटेटर से ना हट जाए, इसीलिए क्या लगाते हैं, स्प्रिंग, जो कि ब्रश को चिपकाए रखेगा कम्यूटेटर से। ठीक है। सेगमेंट चेंज करते टाइम ब्रश स्पार्किंग करता है, बिल्कुल सही बात है, और वो इसलिए करता है क्योंकि जब सेगमेंट चेंज होता है तो कम्यूटेशन प्रोसेस आता है जिसमें करंट रिवर्सल होता है। बट ये सारी चीजें कंसेप्चुअल लेवल पे समझना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू इस तरह के हम लोग विजुअलाइजेशन से समझे। ठीक है। तो अब ये सारी बातें जब हमने डिस्कस कर ली, मैंने आपको शंट मोटर का भी एग्जांपल दे दिया। और मेरे भाई अगर सीरीज मोटर होता तो ब्रश से एक से वाइंडिंग शुरू होके दूसरे ब्रश पे खत्म होती, एक ब्रश से शुरू होके पहले किस पे आती, दूसरे ब्रश पे आती, ताकि आर्मेचर के सीरीज में आ जाती। वो हो जाती है हमारी सीरीज वाइंडिंग। यानी पहले ब्रश, फिर फील्ड वाइंडिंग, फिर आर्मेचर वाइंडिंग, और फिर से ब्रश फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, और एंड में फिर से ब्रश। वो हो जाती है हमारी सीरीज मोटर। तो इस सेशन का ऑब्जेक्टिव यही समझाना था आपको कि किस तरह से एक डीसी मोटर काम करती है। इस तरह के एनिमेटेड सेशंस आपके लिए और लाता रहूंगा ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिलती रहे हाउ एवरी मशीन वर्क्स। तो मशीन और पावर सिस्टम में इस तरह के और सेशन आएंगे। आप लोग बिल्कुल कमेंट में, चैट में मुझे ये जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। और मेरे दोस्त जितनी भी मेरी फ्री क्लासें अटेंड करते रहना, चाहे वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हैं या फिर यूट्यूब पे हैं। आपको शेड्यूल सभी क्लासेस का मैं लगातार बताता रहता हूं, बट मेक श्योर यू आर अटेंडिंग ऑल द सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी। What is dielectric breakdown? Dielectric breakdown is a phenomena in which a dielectric material breaks into positive and negative charge, or you can say its dipoles break into positive and negative charge upon application of a very high electric field. अब इस डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के साथ एक और डेफिनेशन एसोसिएटेड होती है जो कि अक्सर आप देखते हो टर्म, और अक्सर आपसे पूछी भी जाती है, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय अ मटेरियल विदाउट अंडरगोइंग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यानी अगर कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा लगाओगे तब वो ब्रेकडाउन होगा। और कोई मटेरियल कितना बेहतरीन डाइलेक्ट्रिक है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी हाई है। भाई जो आसानी से टूट करके कंडक्टर बन जाए वो किस बात का इंसुलेटर, वो एक अच्छा इंसुलेटर नहीं हो सकता। तो एक अच्छा इंसुलेटर क्या होगा? जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रिटेन कर जाए अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इंसुलेटर बना रहे। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, दे थिंक ऑफ इट एज द वोल्टेज। ये वोल्टेज नहीं है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके ऊपर जाके एक डाइपोल ब्रेक हो जाता है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वो अलग चीज़ है कि वोल्टेज बढ़ाने से ये बढ़ेगी और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आ सकता है। बट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय अ मटीरियल। तो जैसा कि अब हमने देखा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या फिनोमिना है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, तो क्यों ना इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया जाए, क्योंकि बिना किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तो यार हर कॉन्सेप्ट अधूरा है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें मिलता है पावर सिस्टम्स के अंदर। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि ट्रांसमिशन लाइंस में अक्सर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है। तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। देखते हैं कैसे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ट्रांसमिशन लाइन है। अब जब इस पे लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी, तो लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी तो वायर तो कंडक्टर है, तो अब इसमें जो भी चार्ज आएगा दैट चार्ज विल प्रोपोगेट इन द लाइन। और जब ये टावर तक पहुंचेगा, अब टावर और लाइन के बीच में क्या है, इंसुलेटर। अब जब लाइन पे चार्ज ज़्यादा है तो लाइन पे वोल्टेज भी ज़्यादा है, इसे बोलते हैं लाइटनिंग ओवर वोल्टेज। लाइटनिंग के कारण जो हाई वोल्टेज लाइन में पैदा हो जाए दैट इज लाइटनिंग ओवर वोल्टेज। अब अगर इस वोल्टेज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हुई तो क्या होगा, इट विल ब्रेक डाउन। और जैसे ये ब्रेक डाउन होगा तो आपकी वायर का सारा करंट
इंसुलेटर से होते हुए किस में चला जाएगा, टावर के अंदर, और टावर के थ्रू किस में चला गया, ग्राउंड में। तो जो वायर का काम ये था आपके घर तक करंट पहुंचाने का, उसका सारा करंट इंसुलेटर टावर से होते हुए अर्थ में चला गया, एंड दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो यहाँ जो आपका इंसुलेटर होता है वो जल जाता है, वो डैमेज हो जाता है whenever there is a lightning over voltage, and that is the most practical and the best example of this phenomena. Hello everyone and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. I am back again with another episode of Learn Engineering. और इस बार हम लेके आ गए हैं बेटा एपिसोड नंबर 47, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो रोड पे लाइट्स रहती हैं, आपने देखा होगा ना स्ट्रीट पे जहां पे व्हीकल्स हमारे चलते हैं वहां रोड पे लाइट्स लगी रहती हैं विच हेल्प अस शो द पाथ, है ना। तो हमें पाथ दिखता है, सड़क दिखती है उन लाइटों की मदद से, एंड वी कैन ड्राइव सेफली। तो वो लाइटें किस तरह से काम करती हैं ये हम बात करने वाले हैं बेटा लर्न इंजीनियरिंग के इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर। तो मचाने वाले हैं बेटा, फोड़ने वाले हैं, तैयार हो जाओ एकदम शानदार जानदार जबरदस्त सेशन के लिए। शॉर्ट रहेगा वीडियो लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। बट इससे पहले शुरुआत करें, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज ऑफ यू हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। माई नेम इज अंकित गोयल. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो हमारी अनअकैडमी टीम है, क्रिएट्रिक्स टीम है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग टीम है और हमेशा एक लक्ष्य, एक गोल के साथ काम करती है कि अपने बच्चों को हमें एनेबल करना है, हमें ये मेक श्योर करना है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दे आर एबल टू क्रैक एनी एग्जाम विद द टॉप रैंक्स। और इसके लिए बेटा आपके लिए इतने सारे इनिशिएटिव्स हम लेके आते हैं। अब आपको बेटा बस क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है और वहां पे भी हमारे फ्री इनिशिएटिव्स का हिस्सा बनना है। बस उन्हें अनलॉक करना पड़ेगा सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE। और इसके अलावा देखो यार, ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक है। अगर यहां पे आप जाएंगे तो अपकमिंग में आपको आगे आने वाली स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, और बेटा जो ऑलरेडी हो चुकी हैं वो भी आपको ना अलग अलग फोल्डर्स के अंदर मिल जाने वाली हैं, जैसे PSU के क्वेश्चन, CTQ, गेट प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस सेशन, मैराथन सेशन, सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इस कंटेंट को एंजॉय करो, सीखो और फिर एग्जाम में मचा डालो। ठीक है, चलो तो आते हैं भाई आज के टॉपिक पे। रोड पे लगी लाइट्स किस टाइप से काम करती हैं। अब इसके अंदर बेटा सबसे पहली होती है पैसिव लाइटिंग, जिसे कहते हैं रोड स्टड। पैसिव का मतलब ये होता है ना, ये अपनी खुद की लाइट जनरेट नहीं करती है, बल्कि ये क्या है, ये सिर्फ एक रिफ्लेक्टर है। इस टाइप की लाइट आप देखते हो ना, मैंने तो यार बचपन में पता है कब देखी थी ना, साइकिलों में लगवाते थे। उस समय पे साइकिल का बहुत जमाना था, तो साइकिल में पीछे की तरफ लगवा लेते थे एक इस टाइप की लाइट, एक आगे की तरफ लगवा लेते थे। ये क्या होता है, ये सिंपली एक रिफ्लेक्टर होता है। इस पे जब अपनी लाइट कोई डालता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट को। तो इससे क्या होता है ना, देखो साइकिल में क्यों लगवाते थे, मान लो अगर रात को हम साइकिल चला रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, कोई बाइक आ रही है, तो बाइक की अगर हेडलाइट ऑन है और वो जब इस रिफ्लेक्टर पे पड़ेगी, ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, देन वी विल गेट टू नो कि सामने से भी कोई आ रहा है एंड वी कैन अवॉइड अ पोटेंशियल एक्सीडेंट। इसी तरह से बेटा रोड में, रोड की बाउंड्रीज मार्क करने के लिए, या रोड अगर कहीं पे टर्न ले रही है तो आप कैसे बताओगे व्हीकल को, आप बताओगे इन टर्म्स ऑफ दीज लाइट्स। तो जब यहां पे अंधेरे में बेटा कोई भी व्हीकल अपनी लाइट्स ऑन करके, हेडलाइट्स ऑन करके चलता है, वो हेडलाइट इस रिफ्लेक्टर पे पड़ती है, तो ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और जब ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है देन इट ग्लोज, और जब ये ग्लो करता है तो व्हीकल को पता चल जाता है अच्छा भाई यहां से रोड में टर्न लेना है, ये रोड सीधी नहीं जाएगी, तो अगेन इट कैन अवॉइड एन एक्सीडेंट। लेकिन आपने आजकल देखा होगा एक और टाइप की लाइट होती है जो कि रिफ्लेक्टर नहीं होती, बल्कि वो एक्चुअली लाइट ब्लिंक कर रही होती है, वो एक्चुअली लाइट जल रही होती है, वो होती है एक्टिव लाइटिंग। एक्टिव लाइटिंग के अंदर बेटा क्या होता है ना, ये दिखने में उसी जैसी होती है। देखो ये नीचे वाली एक्टिव लाइटिंग है, ये दिखने में इस जैसी है,
लेकिन इसके ऊपर क्या होता है बेटा, सोलर पैनल होता है। तो सोलर पैनल क्या करता है, पूरे दिन में सनलाइट से आने वाली एनर्जी को स्टोर कर लेता है और इसके अंदर जो रखी होती है बैटरी उसे चार्ज कर देता है। तो सोलर पैनल इस बैटरी को चार्ज कर देता है। अब इसके अंदर बैटरी से जुड़ी होती है एक एलईडी जो जुड़ी होती है ना, वो रात के टाइम में ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। वहां पे एक कंट्रोल सर्किट आप लगा दोगे जो कि ये डिटेक्ट करेगा कि अच्छा ठीक है अब अंधेरा है, तो यानी कि नाउ इट्स द टाइम टू लाइट अप दी एलईडी। तो वो एलईडी को जला देता है, किसकी मदद से, एक बैटरी और एक सर्किट की मदद से। तो ये एक्चुअली अपनी खुद की लाइट पैदा करती है बाय मींस ऑफ सोलर सेल। और ये ज्यादा अच्छा है बेटा। मान लो रात के टाइम में किसी ने अपनी हेडलाइट ऑन नहीं की, कोई बिना हेडलाइट ऑन किए चला रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो पैसिव लाइटिंग है ये रिफ्लेक्शन नहीं दे पाएगी और ये रास्ता नहीं बता पाएगी। लेकिन ये जो एक्टिव लाइटिंग है ये तब भी काम करेगी, ये तब भी रास्ता बताएगी। एंड दैट इज व्हाई दिस एक्टिव लाइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कुछ ऐसे भी मॉडल्स हैं बेटा जिनके अंदर सोलर पैनल नहीं होता, लेकिन फिर उनके अंदर वायर लगी होती है। वायर उनको पावर डिलीवर करती है बाय विच दे कैन लाइट अप द एलईडी, ठीक है। और ये पूरे कंट्रोल प्रोसीजर के लिए इसके अंदर एक सर्किट प्रोवाइडेड रहता है जो कि ये डिटेक्ट करता है कि बैटरी को चार्ज करना है या फिर एलईडी को जला के बैटरी को डिस्चार्ज। क्योंकि रात के टाइम में आपको ये डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है कि इस टाइम पे नेचुरल लाइटिंग अवेलेबल नहीं है, तो अब एलईडी को ऑन करने का समय आ चुका है। तो बेटा अगली बार जब कभी रोड पे निकलोगे ना, तो इस चीज को ऑब्जर्व जरूर करना कि कहां पे पैसिव लाइटिंग है और कहां पे एक्टिव लाइटिंग है। दैट विल गिव यू अ ग्रेट आइडिया। और हो सके तो रुक के चेक कर लेना अगर रोड खाली हो। ऐसा मत करना चलती सड़क में उतर जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करना। बट हाँ, अगर आसपास कहीं ऐसा एरिया मिलता है तो डू चेक इट आउट कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से ये काम कर रही है, ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी ही बेटा आपको आगे लेके जा सकती है। तो मिलेंगे इसी तरह से एपिसोड नंबर 48 में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बच्चों ऐसे ही मचाते रहो, फोड़ते रहो। लेट्स क्रैक इट। अब आती है बात शॉर्ट सर्किट एमवीए। शॉर्ट सर्किट एमवीए, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, एपरेंट पावर, ध्यान से सुन लो, एपरेंट पावर भले ही ज्यादातर पावर फॉल्ट के दौरान रिएक्टिव होती है, बट हम एपरेंट पावर बोल रहे हैं, डिलीवर्ड बाय सोर्स ड्यूरिंग फॉल्ट, ठीक है। फॉल्ट के दौरान जो भी पावर बेटा सोर्स डिलीवर करेगा वो कहलाएगा शॉर्ट सर्किट एमवीए। अब देखो यार, आपने ना सिमेट्रिकल कंपोनेंट में एक फॉर्मूला पढ़ा था, S इक्वल टू 3 VA0 IA0 कॉन्जुगेट VA1 IA1 कॉन्जुगेट VA2 IA2 कॉन्जुगेट। और इसी में मैंने ये बताया था जब आप पर यूनिट में आते हो बच्चे तो आप 3 हटा देते हो, तो आप लिखते हो VA0 IA0 कॉन्जुगेट VA1 IA1 कॉन्जुगेट VA2 IA2 कॉन्जुगेट, ठीक है, ये लिखते हो। अब यार एक चीज देखो, आपको ये भी तो मालूम है, इंड्यूस्ड EMF is only positive sequence, इंड्यूस्ड EMF में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस होता है बेटा, सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस। इसी वजह से आप यहां लिख देते हो VA1 IA1 कॉन्जुगेट। Now EMF in positive sequence is 1 angle 0। तो apparent power क्या हो गई, ये हो गई ना। आइए बताया था नो लोड पे EMF 1 angle 0 होता है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होगा, ये सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की। और ये तो अभी आपने निकाला ही है पर यूनिट में, ये निकाला है ना। अब मैं कहता हूं शॉर्ट सर्किट एमवीए कैसे निकलेगा भैया, ये पर यूनिट पावर है
इसमें बेस मल्टीप्लाई कर दो यार, समझ रहे हो, ये हुआ S बेस बाय, लेकिन यार देखो इसके अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट रूल बेटा ये है, ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में भी काम देगा, ये मत भूल जाना कि पर यूनिट वैल्यू ऑफ द फॉल्ट MVA इज इक्वल टू द पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इन पर यूनिट। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इन पर यूनिट, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बेटा जब आप अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में जाएंगे तब आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, तब आप एक बहुत बढ़िया चीज ऑब्जर्व करेंगे कि वहां फॉल्ट करंट और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट अलग अलग आते हैं। यहां तो देखो यार करंट में एक ही सीक्वेंस है, सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो करंट, टोटल करंट या पॉजिटिव सीक्वेंस करंट बराबर है, ठीक है। यहां पे आपका टोटल करंट और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट बराबर है, देयर इज नो नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस। लेकिन मेरे बच्चे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा, तो फॉल्ट करंट और पॉजिटिव सीक्वेंस अलग अलग होंगे। तब इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है दैट पर यूनिट फॉल्ट MVA इज इक्वल टू पर यूनिट फॉल्ट करंट, सॉरी पर यूनिट पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। बहुत सारे लोग गलत क्या पढ़ाते हैं, यहां पे आपको IF लिखवाते हैं। गलती मत करना बेटा, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि वोल्टेज होती ही नहीं नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस में, तो नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कैन नॉट डिलीवर पावर, समझ रहे हो। EMF सिर्फ किस में है, पॉजिटिव सीक्वेंस में, तो ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कैन डिलीवर पावर, अदर सीक्वेंसेस कैन ओनली एब्जॉर्ब। वो ले तो सकते हैं बेटा, दे नहीं सकते, दे डू नॉट हैव एनी सोर्स। चमका ये,